Okay. So we start with chapter number 9 directly. Okay, registration under GST. Basically, whenever you talk about any taxation law, registration is a very fundamental compliance which you have to make. Because for what we can say, if you say income tax, under income tax, PAN is your identity. So on the basis of PAN, you are recognized. Okay. The income tax doesn't recognize you by your name, basically your identity, your PAN. On that basis of that PAN, the entire transactions are मतलब इनकम टैक्स रिकॉर्ड में वो पैन के हिसाब से रहता है. ऐसे ही मतलब इनकम टैक्स के अंदर ऐसे कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन नहीं है. ओके. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट जीएसटी or if you talk about erstwhile excise laws or service tax, VAT, in all these indirect taxes, there is a specific provision for registration under that law. So what is the role of this registration? Registration basically gives you the identity under the tax law. Okay. So if you have to do any of the compliances under GST law, you must be registered. Okay. Or suppose the two fundamental principles under GST. Under GST, what happens is the seller collects tax from the customer and he pays that to the government. Right? This is a basic. It means the government gives you the authority to collect tax from the customer on the behalf of government. So unless and until you are registered under GST, you are not eligible for collecting the tax from the customer. Okay, so if you have to collect the tax from the customer, the first thing which you have to do is you have to obtain GST registration. Second thing is that we saw there is a concept of input tax credit. So whatever GST you pay on your purchases, you are allowed at credit, right? So unless until you are registered under GST law, you are not eligible for input tax. So when we will discuss about that ITC in our next Saturday lecture. So first and foremost condition under that ITC is you must be registered under GST. So registration is a very fundamental. सबसे पहले क्या करना है जीएसटी में, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है. उसके बाद बाकी जो कुछ चीजें है वो आपको करने से देगा. फंडामेंटल रिक्वायरमेंट अंडर एनी टैक्स में. Why it is necessary for identification of the taxpayer. So that your GST registration gives you an identity. Then third important thing, unless until you are registered, you cannot collect tax from the customer. मतलब आप अगर रजिस्टर्ड नहीं हो और अगर आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हो तो दैट इज अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स और इलीगल कलेक्शन ऑफ टैक्स. ओके. सो आपको रजिस्ट्रेशन आपका होना बहुत जरूरी है. अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको आईटीसी भी नहीं मिलता. तो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है जीएसटी के, वही आपको उसका बेनिफिट इसमें नहीं मिलेंगे. देन वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीएसटी कंप्लायंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. Now, under GST, we have already, I think, discussed this. Under GST, we have the concept of this one, state-wise registration. So there is no concept of centralized registration under GST. मतलब ऐसा कोई हो नहीं सकता कि ऑल ओवर इंडिया मेरा सभी जगह के लिए एक ही GST रजिस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं हो सकता. There is a concept of state-wise registration. So if I am doing business from more than one states or union territories, then I have to obtain registration in each of these states and union territories. Okay. इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. अगेन, the GST registration is a PAN-based registration. So if you have to obtain your GST number, first thing you must have your PAN. If you don't have PAN, then you are not eligible for GST registration. And again, when we say GST law, there is CGST Act, HGST Act, IGST Act, UTGST Act. Okay. तो जीएसटी पे कैसा है कि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन की कंसेप्ट है, लेकिन द सिंगल रजिस्ट्रेशन इज वैलिड अंडर ऑल द जीएसटी लॉ. ऐसा नहीं है कि सीजीएसटी के लिए अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, एचजीएसटी के लिए अलग है, आईजीएसटी के लिए अलग है. ऐसा कोई भी जीएसटी में प्रोविजन नहीं है. सो वन रजिस्ट्रेशन वैलिड अंडर ऑल द लॉज अंडर जीएसटी. ओके. सो एंड देन बट यू हैव टू ऑब्टेन स्टेट वाइज डिफरेंट रजिस्ट्रेशन. So if we talk about the GST registration under GST law, तो बहुत सारे सेक्शन इसमें है, फ्रॉम सेक्शन 22 to section 30. So there are total 9 sections which deal with these provisions of
जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओके, तो किस किस को रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना पड़ता है, वो कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कब होता है, कैंसिल कब होता है, तो सब प्रोविजन जो है वो इस सेक्शन में सेक्शन 22 से सेक्शन 30 तक सभी इसमें दिए हुए हैं। हमको वही अब वन बाय वन डिस्कस करना है। ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 22, इट मींस पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी में ऐसा है कि देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट, इफ योर टर्नओवर इज बिलो दैट थ्रेशोल्ड लिमिट देन you are not required to obtain registration under GST. Okay, but if your turnover crosses that particular threshold, then it is necessary that you must obtain registration. This is a basic provision which section 22 says. Now we will understand detail में क्या provision है। देखो, persons liable for registration under section 22. Okay, so what that section 22 basically says, first we will see what is the second point, then we will come to first. Okay, second point, what is this? Registration is mandatory only if it means taxpayers aggregate turnover exceeds the threshold limit subject to provision of section 24. Okay, so basically section 22 क्या बोलता है कि अगर आपका aggregate turnover तो prescribed threshold limit है, इससे अगर ज्यादा होता है या उससे exceed होता है तो it is mandatory for you to obtain GST registration. तो सबसे पहला सेक्शन 22 में हमें क्या बताया कि there is a threshold limit, अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ओके, एंड सेकंड थिंग कि अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मैंडेटरीली लेना पड़ेगा। लेकिन दे आर सेइंग कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 24। सेक्शन 24 एक ऐसा सेक्शन है जो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उसमें ऐसा बोला है कि सेक्शन 24 में कुछ स्पेसिफिक केसेस है, उन केसेस में आपका टर्नओवर कितना भी आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना पड़ता है irrespective of your turnover. If you are doing ₹1 turnover also you are liable for registration. So compulsory registration के cases section 24 में दिए हैं, तो वो तो है, लेकिन अगर आपका केस 24 में कवर नहीं होता है then normally what will happen, if your turnover exceeds that aggregate turnover threshold limit then you have to obtain GST registration. This is the basic thing. Okay, तो ये जो aggregate turnover का लिमिट है ये क्या है? So हमारे यहाँ पे 3 कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ओके, पहला जो कैटेगरी है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये जो 4 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के। ठीक है, इन 4 स्टेट में ऐसा है कि अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो या फिर आप सर्विस सप्लाई करते हो, किसी भी केस में अगर आपका टर्नओवर 10 लाख एक्सीड होता है, 10 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है वहां, कौन से? इन 4 स्टेट में। ओके, if your turnover crosses the threshold limit of 10 lakhs, then it is mandatory for you to obtain GST registration. Understood? Okay, कौन से 4 स्टेट? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 4 स्टेट ऐसे है कि अगर वहां पे आपका टर्नओवर 10 लाख क्रॉस होता है, गुड्स का हो या सर्विस का हो फर्क नहीं पड़ता, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो फॉर दिस 4 स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 lakhs. Now there is a second category of states, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। ओके, ये 6 स्टेट्स ऐसे हैं कि इन स्टेट्स में ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 lakhs की। भले आप गुड सप्लाई करते हो या सर्विस सप्लाई करते हो फर्क नहीं पड़ता, इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स 20 lakhs थ्रेशोल्ड देन इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये 6 स्टेट में लिमिट कितना है? 20 lakhs है। तो एक लिमिट हमने देखा 10 lakhs का, सेकंड कैटेगरी में 20 lakhs का, और ये दो छोड़ के जो बाकी के सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पे ऐसा है कि गुड्स में अगर आप डील करते हो तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 lakhs की, अगर आप सर्विस में डील करते हो तो आपके लिए लिमिट है 20 lakhs की। अंडरस्टूड? थर्ड कैटेगरी में क्या है कि इफ यू आर एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन गुड्स, द वर्ड इज एक्सक्लूसिव, अगर आप गुड्स प्लस सर्विस दोनों एक साथ दे रहे हो तो आपके लिए लिमिट 20 लाख का ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हो तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा 40 lakhs। कौन से? ये 10 स्टेट छोड़ के बाकी सभी स्टेट में। ओके, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स, महाराष्ट्र रहेगा, गुजरात रहेगा, कर्नाटका, सभी पे ये सेम है कि इफ यू आर एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन गुड्स द थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल टू यू इज 40 lakhs, but if you are dealing in services
और गुड्स प्लस सर्विसेज, देन द टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल फॉर यू इज 20 लाख। अंडरस्टूड? तो महाराष्ट्र कहाँ पे आता है? तीसरे कैटेगरी में आता है। इतना बेसिक समझ में आ गया। 10 लाख 4 स्टेट में है, गुड्स या सर्विस कोई भी हो। 6 स्टेट में 20 लाख है, गुड्स या सर्विस कोई भी हो। और बचे हुए जो है उनमें कैसा है कि एक्सक्लूसिव गुड्स रहेगा तो 40 लाख, अगर आप गुड्स प्लस सर्विस या फिर सर्विस में डील करते हो तो 20 लाख। ओके, लेकिन इसमें भी एक राइडर ऐसा है, ये 40 लाख का थ्रेशोल्ड है ना गुड्स का, वो कुछ स्पेसिफिक गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। वो कौन से गुड्स है? देखो, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, ओके, पान मसाला, टोबैको, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, fly ash bricks, bricks of fossil mills and similar siliceous earths, building bricks and earthen roofing tiles। इन चीजों में अगर आप डील कर रहे हो तो इसमें आपको 40 लाख का जो एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब अब अगर आप इस गुड्स में भी डील करते हो तो भी आपके लिए 20 लाख का ही लिमिट। अंडरस्टूड? कौन सा? ये जो है ना, ये सिर्फ तीसरे कैटेगरी के लिए बोल रहे हैं हम। पहले 2 कैटेगरी तो अलग ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनमें एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट है ही नहीं। समझ में आ गया? सो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 4 स्टेट में 10 लाख, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी, तेलंगाना इन 6 स्टेट में 20 लाख, एंड बचे हुए सभी में एक्सक्लूसिव गुड्स के लिए 40 लाख एंड अदर देन एक्सक्लूसिव गुड्स के लिए 20 लाख। और 40 लाख के केस में भी ये 4-5 आइटम जो है वो अगर आप डील करते हो तो आपको 40 लाख का बेसिक जो एनहांस लिमिट है वो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? ये बेसिक सेक्शन 22 ने बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना है। ओके, आगे जाके सेक्शन 22 क्या बोलता है? देखो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी मस्ट गेट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है या 40 लाख क्रॉस होता है, 10 लाख क्रॉस होता है, अकॉर्डिंग टू ईच स्टेट, देन आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। ये तो फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग क्या वो बोल रहे हैं कि जिस भी स्टेट से आप टैक्सेबल गुड्स या सर्विस का सप्लाई करते हो उस हर एक स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। तो मैंने बोला ना स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन की कंसेप्ट को, तो सेक्शन 22 में बताइए। समझ में आ गया? तो 2 चीजें क्या इसमें सेक्शन 22 में बेसिक हमने सीखी। एक तो आपका टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और दूसरी थिंग, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लायबल होते हो तो उस हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आप रजिस्ट्रेशन लोगे जिस स्टेट से आप टैक्सेबल गुड्स या सर्विस का सप्लाई करते हो। अंडरस्टूड? ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इसमें देखो, द वर्ड which they are using, what they are using the word aggregate turnover exceeds the threshold. They are not using the word just turnover. Okay, what word they are using? Aggregate turnover exceeds the threshold. तो एग्रीगेट टर्नओवर को स्पेसिफिक मीनिंग है जीएसटी में। ओके, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज। इसमें टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा, एग्जाम सप्लाई आ जाएगा, एक्सपोर्ट आ जाएगा, सब कुछ जो भी है उसमें आ जाएगा। ओके, ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। इसमें एक्सक्लूड क्या होगा? सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी एक्सक्लूड होगा, और इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम वो एक्सक्लूड होगा। देखो, ये समझना है हमको एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। इज वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, उस म्हणजे उसमें टैक्सेबल सप्लाई आ जाएंगे, एग्जाम सप्लाई भी आ जाएंगे, एक्सपोर्ट आ जाएगा, इंट्रास्टेट आ जाएगा, इंट्रास्टेट जो भी कुछ आप सप्लाई करते हो आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब P&L का क्रेडिट साइड, राइट, वो सभी का टोटल कैसे कंप्यूट करना है? टू बी ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। इसका मतलब एक पैन के अंदर ऑल इंडिया बेसिस पे जितने भी लोकेशन पे आप बिजनेस करते हो उस हर एक लोकेशन का टोटल मिलकर जो टर्नओवर है उसको एग्रीगेट टर्नओवर बोलना है। सो अगर देखो ऐसा है कि मैं महाराष्ट्र में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, ओके, दिल्ली में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, मेरा आसाम में प्लेस ऑफ बिजनेस है, और मेरा कर्नाटका में प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो माय एग्रीगेट टर्नओवर भी महाराष्ट्र का टर्नओवर प्लस आसाम का टर्नओवर प्लस दिल्ली का टर्नओवर प्लस इसका कर्नाटक का टर्नओवर,
ये चारों का मिला के जो टोटल टर्नओवर मेरा होगा उसको मैं एग्रीगेट टर्नओवर बोलने वाला हूं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ऐसे कि सपोज मेरा महाराष्ट्र का टर्नओवर 5 लाख का है, गुजरात का टर्नओवर 10 लाख का है, ओके, आसाम का टर्नओवर 20 लाख का है, ओके, और लेट्स से कर्नाटका का टर्नओवर 10 लाख का है। तो किसी भी एक स्टेट में मैं 10 लाख भी क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, 20 लाख भी क्रॉस नहीं कर रहा है। इसका मतलब मुझे रजिस्ट्रेशन में के लिए लायबल नहीं हुआ, ऐसा है क्या? नहीं है। मुझे क्या करना है, सबका मिला के टर्नओवर कितना हो रहा है। तो महाराष्ट्र का 10 लाख प्लस गुजरात का 5, 15 हो गया, आसाम का 20, 35 हो गया, कर्नाटक का 10, 45 हो गया। तो आई एम क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 lakhs, तो आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अंडरस्टूड? ये टर्नओवर लिमिट का देखना है, सिर्फ उस स्टेट मतलब इंडिविजुअल नहीं देखना है, सबका मिला के कितना हो रहा है, व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? देखो एग्रीगेट टर्नओवर किसको मतलब पैन इंडिया बेसिस पे जितने भी मेरे लोकेशन है उस सबका मिला के टोटल टर्नओवर कितना हो रहा है। वो टर्नओवर एग्जम्प्ट है कि टैक्सेबल है, क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। ये सब हमको एडअप करना है और उसका वैल्यू देखना है कि वो 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख क्रॉस हो रहा है। ओके, इसमें लेना क्या नहीं है, जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है। इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी देखा था ना हमने, अदर देन जीएसटी हम सब इंक्लूड कर रहे हैं, जीएसटी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सेम यहाँ पे तो देखो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब इसका जो बेसिक टैक्सेबल प्राइस है वही हम देखेंगे, इसमें जीएसटी हमको ऐड नहीं करना है। और दूसरी चीज ऐसे इनवर्ट सप्लाई जिसपे हम आरसीएम के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं। देखो हमारी टैक्स लायबिलिटी दो चीजों पे बनती है, पहला तो है जो मैं आउटवर्ड सप्लाई खुद से करता हूँ उसके ऊपर मेरी लायबिलिटी है, और दूसरी चीज जो मैं आरसीएम के अंदर एज अ रिसिपिएंट में लायबल हूँ कुछ ट्रांजेक्शन पे टैक्स पे करने के लिए, राइट। सो आरसीएम के लिए जो इनवर्ट सप्लाईज मेरे हैं जिसके ऊपर मुझे टैक्स देना है वो मुझे एग्रीगेट टर्नओवर में लेना नहीं। समझ में आ गया? देखो इसमें अगर ऐसा है कि जैसे हमने 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 10 लाख एडअप किए, इसमें अगर ऐसा होता है कि मैं महाराष्ट्र से गुजरात को कुछ ब्रांच ट्रांसफर करता हूं, वो भी आपको ऐड करना है उसमें, ठीक है। तो जीएसटी बोलता है कि हर एक स्टेट का रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, डिस्टिंक्ट पर्सन, लेकिन टर्नओवर के लिए बोलते हैं आप सब एक। अगेन वो अप्रोच ऐसा है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स ब्रैकेट में आने चाहिए, इसलिए जहाँ पे गवर्नमेंट का फायदा है वहां पे बोल रहे हैं सबका मिला के एक टर्नओवर देखो, जहाँ पे उनको फायदा है वहां पे बोल रहे हैं कि आप हर एक रजिस्ट्रेशन मतलब अलग अलग है। ओके, समझ गया एग्रीगेट टर्नओवर का कंसेप्ट। ये एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, और हर एक उस स्टेट में लेना है जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब देखो इस एग्रीगेट टर्नओवर का इंटरप्रिटेशन हम थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। Suppose I am having two places of business, one place of business in Maharashtra and another place of business in Manipur. Okay, I have two places of business, one in Maharashtra, one in Manipur. I am exclusively dealing in goods. Okay, I am exclusively dealing in goods. The turnover from Maharashtra is 7 lakhs. Our turnover from Maharashtra is 7 lakhs and turnover from Manipur is 5 lakhs. So what is my aggregate turnover? 12 lakhs. अब देखो मणिपुर के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख का, महाराष्ट्र के लिए 40 लाख का। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो जो लोएस्ट है वो लेना है। इसमें ऐसा हो जाएगा कि मेरा महाराष्ट्र का टर्नओवर 7 लाख है, मणिपुर का टर्नओवर 5 लाख है, ये मिला के 10 लाख क्रॉस हो रहा है, तो आई बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बोथ इन मणिपुर एंड महाराष्ट्र। अंडरस्टूड? तो अगर मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसे स्टेट में मेरा ये है क्या प्लेस ऑफ बिजनेस है और मैं अगर एग्रीगेट टर्नओवर देखता हूं तो उन स्टेट में से लोएस्ट लिमिट कहां पे एप्लीकेबल है वो आपको देखना है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर की रजिस्ट्रेशन के लिए मैं लायबल रहूंगा क्या नहीं रहूंगा। इस केस में कैसा कि 12 लाख क्रॉस हो रहा है, तो महाराष्ट्र में तो 40 लाख का है, वहां पे नहीं है, लेकिन मणिपुर में वो 10 लाख क्रॉस हो रहा है, तो देयरफॉर आई बिकम लायबल फॉर। समझ में आ गया? ओके, सो बेसिक दो तीन चीजें क्या देखी। फर्स्ट वन, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। दूसरी, इन एवरी स्टेट यू हैव टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। और एग्रीगेट टर्नओवर बोले तो पैन इंडिया बेसिस पे सबका मिला के जो एग्रीगेट वैल्यू आता है दैट इज माय एग्रीगेट टर्नओवर।
उसमें मुझे जीएसटी के टैक्सेस ऐड नहीं करने हैं और इनवर्ड सप्लाईज लायबल अंडर आरसीएम जो है वो भी हमें ऐड नहीं करने। ये समझ में आ गया? नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्रीगेट टर्नओवर का कैसे इंप्लीकेशन है। देखो, देयर इज अ कंपनी एबीसी लिमिटेड, ओके, एंड व्हाट हैज हैपेंड कि एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड उसका हेड ऑफिस मुंबई में है। तो उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो बुक में नहीं है, मेरा खुद का प्रॉब्लम है, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। मुंबई एचओ से उसका टर्नओवर हो रहा है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, ओके। दिस एबीसी लिमिटेड हैज अ फैक्ट्री एट जामनगर, गुजरात। वहां से उसका टर्नओवर हो रहा है 20 लाख रुपए, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम जामनगर फैक्ट्री टू मुंबई एचओ, वहां चला, ठीक है। सेल्स ऑफिस, मेरा दिल्ली में सेल्स ऑफिस भी है, वहां से मैंने टर्नओवर किया है 3 लाख रुपए। देयर इज इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर आरसीएम एट मुंबई एचओ कितना है? 2.5 लाख का। एंड देयर इज अ फैक्ट्री इन सेलम, तमिलनाडु, फ्रॉम वेयर आई एम मेकिंग एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई, एंड वहां से मेरा टर्नओवर हो रहा है 10 लाख। सो नाउ हमको इसका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है एंड डिटरमाइन करना है कि कौन कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन मुझे लेना है, ओके। यू विल टेल मी वन वर्ड, मुंबई एचओ का टर्नओवर हम ऐड करेंगे क्या? 6 लाख का, वो तो करना पड़ेगा, उसमें कुछ ये नहीं है। गुजरात फैक्ट्री का टर्नओवर वो भी ऐड हो जाएगा, इसमें कुछ इश्यू नहीं है। स्टॉक ट्रांसफर ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐड करेंगे, अभी मैंने बताया, ओके। सो ये 5 लाख भी ऐड हो जाएगा। दिल्ली के सेल्स ऑफिस का जो टर्नओवर है 3 लाख का, वो भी ऐड हो जाएगा, वो तो मेरा टर्नओवर है ही। ये 2,50,000 का क्या करना है? इनवर्ड सप्लाईज लायबल फॉर आरसीएम, ये एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आते हैं, तो आई विल नॉट ऐड दिस 2,50,000। एंड तमिलनाडु से जो मेरा 10 लाख का टर्नओवर हो रहा है, वो हम ऐड करेंगे कि नहीं? वो हम ऐड करेंगे। तो व्हाट विल बी माय एग्रीगेट टर्नओवर? टेल मी। 26 and 5, 31, 34, 44 lakhs, right? My aggregate turnover becomes 44 lakhs, so which is crossing the threshold limit. 40 लाख का भी क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट? ये समझ में आ गया? टर्नओवर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है, इसलिए मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लायबल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना है? फर्स्ट वन, मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का टर्नओवर सिर्फ 6 लाख है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर 23 लाख के ऊपर जा रहा है। गुजरात के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? वहां पे तो मेरा फैक्ट्री है, वहां पे लेना पड़ेगा। ये स्टॉक ट्रांसफर करके छोड़ दो, ये तो गुजरात और मुंबई के बीच में। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? लेना पड़ेगा। और तमिलनाडु में? तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। Why? Again, we will come back. Registration in each state or union territory from which he makes taxable supply of goods or services. And from Tamil Nadu, I am exclusively making exemption. Exemption मतलब इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अगर तमिलनाडु से 1 रुपए का भी टैक्सेबल सप्लाई होता है, तो आई बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन तमिलनाडु ऑल्सो। सिंस इस केस में क्या हो रहा है, मैं एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई तमिलनाडु से कर रहा हूँ, इसलिए भले मेरा एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो रहा हो, मुझे तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, बाकी तो स्टेट्स में लेना है, ओके। सो मैं एग्रीगेट टर्नओवर 44 लाख हमें किया कैलकुलेट। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे लेना है? महाराष्ट्र, गुजरात एंड दिल्ली। तमिलनाडु में क्या होगा? सिंस आई एम नॉट मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई, आई एम नॉट लायबल फॉर इट। मतलब एग्जाम सप्लाई पे तो लायबिलिटी नहीं आती है कोई भी। अगर ऐसा है कि 10,01,000, ओके, 10,01,000 इतने रुपए का मेरा टर्नओवर है तमिलनाडु से, 10 लाख एग्जाम का, 1,000 सिर्फ टैक्सेबल है, तो तमिलनाडु में भी लेना है। अंडरस्टूड? तो 2 बेसिक कंसेप्ट सबको क्लियर हो गए। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और हर एक स्टेट में लेना पड़ेगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, ओके। एग्रीगेट टर्नओवर में अगर ऐसा है कि कुछ स्टेट में थ्रेशोल्ड लिमिट कम है, कुछ स्टेट में ज्यादा है, तो आपको क्या करना है? लोएस्ट लिमिट कौन सी है, उस हिसाब से आपको डिटरमाइन करता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके, कितना क्लियर हो गया सबको? ओके, सो यू हैव टू सी कि व्हाट इज दिस एग्रीगेट टर्नओवर।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे किसी भी एक स्टेट में 20 लाख क्रॉस कर रहा हूँ क्या मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एग्रीगेट 44 लाख होने की वजह से हर एक स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, जाने का आगे। दिस इज बेसिक प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिस इज गिवन इन सेक्शन 22। ओके, नाउ वी विल गो टू सेक्शन 20। 22 में और 3 चीजें ऐसे कि जिनको देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी मतलब यहाँ पे टर्नओवर लिमिट आपको एप्लीकेबल नहीं होता है इन 3 केस में। फर्स्ट वन मैंड कौन सा, ऑल द पर्सन हु वर रजिस्टर्ड अंडर ओल्ड लॉज एज ऑन 30 जून 2017। तो ये बेसिकली ट्रांजिशनल प्रोविजन था कि जब जीएसटी के पहले बाकी के लॉज थे, अगर आप बाकी के लॉज के अंडर रजिस्टर्ड थे ओल्ड लॉज में, तो फिर आपका टर्नओवर 20 लाख ना भी हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। तो ये तो ट्रांजिशन प्रोविजन था, प्रैक्टिकल रिलेवेंस का भी कुछ नहीं रहा। सेकंड, अगर कोई बिजनेस ट्रांसफर होता है, ओके, इफ बिजनेस देयर इज अ बिजनेस ट्रांसफर एंड ट्रांसफरर इज रजिस्टर्ड, तो ट्रांसफरी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अगर ए और बी लिमिटेड मर्ज होता है और ए का रजिस्ट्रेशन है तो बी को भी लेना पड़ेगा। बी ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा टर्नओवर अभी 40 लाख 20 लाख नहीं हो रहा है, तो आपको इस केस में रजिस्ट्रेशन लेना ही है। एंड थर्ड थिंग, अगर अमालगमेशन डीमर्जर होता है तो उस केस में भी वो जो अमालगमेटेड कंपनी है या डीमर्ज्ड कंपनी है, समझ लो ना, अमालगमेटेड बोले तो नई कंपनी, डीमर्ज मतलब जो नए 2 कंपनी फॉर्म होते हैं वो, ओके, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। या फिर अगर सक्सेशन होता है बिजनेस, फादर के नाम पे जीएसटी नंबर है, फादर की डेथ होती है और अगर सन वो बिजनेस कंटिन्यू करता है तो सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये 3 एक्सेप्शन केसेस छोड़ के बाकी सब इसमें अगर आपका एग्रीगेटर में एक्सीड नहीं होता तो आपको नंबर नहीं लेना। ठीक है, नाउ वी विल डायरेक्टली जंप टू सेक्शन 24। सेक्शन 23 के बाद देखेंगे। सेक्शन 24 बोलता है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केस। अब इसका मतलब अगर आपका केस सेक्शन 24 में फेल हो रहा था, फॉल होता है, तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लेना है। आपका टर्नओवर क्रॉस होता है कि नहीं होता है ये बात यहाँ पे मैटर नहीं करेगी। ओके, जो 24 में फॉल नहीं होते उनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर मैटर करेगा। अगर आपका केस 24 में फॉल होता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर यू हैव टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अंडरस्टूड? ओके, सो कौन कौन से केसेस देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 24 ओवरराइड सेक्शन 22। ओके, इसका मतलब 22 को ओवरराइड में सेक्शन 24 विल ओवरराइड ओवर सेक्शन 22, तो इसके प्रोविजन एप्लीकेबल सेक्शन 22 से ओवर एंड अबव हो जाएंगे। ओके, सो following persons are compulsory liable to registration irrespective of their turnover. Okay, कौन कौन से? फर्स्ट वन, persons making interstate taxable supply of goods other than notified handicraft goods। अगर आप किसी गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई करते हो और वो गुड्स अगर टैक्सेबल है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अंडरस्टूड? ओके, देखो इंटरस्टेट, दे आर नॉट सेइंग इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट मतलब आप महाराष्ट्र में और अगर आप गुजरात या कर्नाटका या मध्य प्रदेश की किसी पार्टी को सेल कर रहे हो, दैट इज इंटरस्टेट। तो इफ यू आर मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स देन यू हैव टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। मतलब मेरा टर्नओवर अगर 2 लाख रुपए भी है और मुझे कुछ इंटरस्टेट सप्लाई करना है तो मुझे पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मैंडेटरी। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा टर्नओवर लीगल लिमिट से कम। ठीक है, अब देखो 2-3 छोटी छोटी चीजें। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इफ आई एम मेकिंग इंटरस्टेट एग्जाम सप्लाई, ये क्लॉज मुझे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि लेट्स से हमारे यहाँ पे रत्नागिरी में अभी मैंगो का सीजन चालू हो रहा है। ओके, तो मैंगोज मतलब फ्रेश फ्रूट अगर रहता है तो दैट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। तो इफ आई हैव टू सेंड सम फ्रेश मैंगोज फ्रॉम से रत्नागिरी टू गोवा, देन आई एम, ये क्लॉज मुझे एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि मैंगो इज नॉट टैक्सेबल गुड्स। ओके, अगर मैं इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट वाला क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा और मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम भी हो फिर भी मुझे रजिस्ट्रेशन देना है। एंड अदर देन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, देयर आर सम नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें बोला कि ये स्पेसिफिक हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, अगर इसका आप इंटरस्टेट सप्लाई करो तो भी आपको ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो अदर देन एग्जाम्प्ट गुड्स एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इफ यू आर मेकिंग इंटरस्टेट
supply any taxable goods, you have to obtain registration under GST. Understood? Now, this number 2 and number 4, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन दो कैटेगरी के लोगों को कहीं पे भी थ्रेशोल्ड लिमिट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है. इनको इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है. फॉर टाइम बिंग आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ऐसे दो लोग हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. ये क्या है, ये सेक्शन 27 में इसी चैप्टर में हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तब मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ. ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मेंशन एक और जगह पे था, याद है किसी को? इससे पहले भी एक चैप्टर में ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हमने, राइट, 7 स्पेसिफाइड पर्सन फॉर जीटीए सर्विसेज. ओके, उसमें भी एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. तो ये दो लोग ऐसे है कि जिनको टर्नओवर का थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट, थर्ड, persons were required to pay tax on inward supplies under RCM of section 9(3). 9(3) कौन सा है? क्या डिफरेंस है 9(3) का रिवर्स चार्ज और 9(4) का रिवर्स चार्ज में? याद है, डिस्कस किया था ये. There are two types of reverse charge. One is under section 9 subsection 3, other is under section 9 subsection 4. याद है किसी को? No. 9(3) और 9(4) में ऐसा है कि the reverse charge will be applicable only on notified goods and services. But 9(3) का रिवर्स चार्ज है कि notified goods and services supplied by anyone to anyone, रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल. बट अगर आप 9(4) में जाओगे तो notified goods and services सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो ये एप्लीकेबल होता है. ओके, 9(3) में सप्लायर रजिस्टर्ड है कि नहीं ये मैटर नहीं करता है. तो अगर आप 9(3) के अंडर जो हमने लिस्ट जीटीए सर्विस, स्पॉन्सरशिप या फिर वो एडवोकेट, ट्रिब्यूनल, वो सब सर्विस हमने जो पढ़े थे, एक 15-16 सर्विस की लिस्ट, उसमें से किसी इस पे अगर आपको रिवर्स चार्ज भरने के लिए आप लायबल होते हो तो आपका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड है तो भी आपको आपको रजिस्ट्रेशन लेना है. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि सपोज आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बट आई अवेल सम सर्विस फ्रॉम एडवोकेट, so I become liable as a recipient, I become liable for registration, sorry, liable for RCM. तो उस केस में मेरा टर्नओवर अगर 20 लाख क्रॉस नहीं भी होता है तो भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और वो जीएसटी पे करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? थर्ड केस क्या है? देखो 9(4) इसमें कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ 9(3) कवर है. ओके, देन every electronic commerce operator who is required to collect tax under section 52. So if you are an electronic commerce operator, then it is mandatory for you to obtain registration. It is required to collect tax under 52. हमारे सिलेबस में TDS TCS करके अलग से चैप्टर है, तब मैं बताऊंगा उसके बारे में. Okay, so if you are an electronic commerce operator, then you are liable for registration under G. Sixth case, if persons who supply goods or services through electronic commerce, then in that case also registration is mandatory. ओके, इसका मतलब अगर लेट्स से आई एम डीलिंग इन सम गुड्स, माय टर्नओवर इज 5 लाख रुपीज एंड आई वांट टू सेल गुड्स थ्रू अमेजन और फ्लिपकार्ट, फिर मेरा टर्नओवर 5 लाख से कम भी हो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बिकॉज आई एम सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू ईसीओ. ओके, अदर देन सर्विसेज कवर्ड अंडर 9(5). लेकिन अगर वो सर्विसेज 9 सबसेक्शन 5 में कवर हो रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. अदर देन 9(5), अगर आप ईसीओ से कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो देन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना मैंडेटरी है. 9(5) में क्या है? व्हाट इज 9(5)? तो आपको रीड करना पड़ेगा. सैटरडे टू सैटरडे का ये नहीं है, जब क्लास खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद बहुत टाइम है एग्जाम देने से. See 9(5), 9(5) are these services on which liability to pay tax is shifted on ECO and not on the service provider. क्या टाइप की सर्विस थे? एक रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, ओमनी बस,
मैक्सी कैब, वो था, ओला उबर वाला सर्विस। सेकंड कौन सा था? गो आईबीबो, होटल बुकिंग, ओके, गो आईबीबो, booking.com एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड वाला कौन सा था? रिपेयर मेंटेनेंस या मैनपावर आप अप्लाई करते हो, राइट, वो अर्बन कंपनी टाइप के जो एक्टिविटीज वो। और चौथा कौन सा था? स्विगी जोमेटो, रेस्टोरेंट वाला, राइट। ये चार सर्विसेज सेक्शन 9 सेक्शन 5 में कवर होता है, जिसमें टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी है? ईसीओ की है। अब देखो, अगर इसमें टैक्स पे करने की लायबिलिटी ईसीओ की है, तो वो टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन लेके क्या करेगा? उसमें उसके ऊपर तो लायबिलिटी है नहीं। ओके, सो अगर आपकी सर्विस 9(5) में कवर होती है तो ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है, अदर देन 9(5). ओके, अदर देन 9(5), अगर आप ईसीओ से कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ओके, नेक्स्ट, पर्सन्स वर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर आर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड। तो जीएसटी में कुछ लोगों को टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाए। पता है टीडीएस क्या होता है? मतलब क्या होता है टीडीएस? बोले तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या है? राइट, ओके। तो टीडीएस का मतलब ऐसा है कि मान लो मैं अगर आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा हूँ, तो आपको पेमेंट करते वक्त ही मैं उससे 10,000 रुपए टैक्स डिडक्ट करता हूँ और गवर्नमेंट को पे करता हूँ ऑन योर बिहाफ, और आपको मैं 90% में पे करता हूँ। ऐसे जीएसटी में भी कुछ केसेस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अभी इतना सिर्फ याद रखो कि अगर आपको टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना। ठीक है, वो क्या टीडीएस टीसीएस क्या है 51 और 52, तो हम जब वो चैप्टर आ जाएगा तब डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक 7वीं कैटेगरी जिनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना है। नेक्स्ट इज persons who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable persons। मतलब क्या है? ये एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। ओके, अगर एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है और अगर प्रिंसिपल इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इट इज मैंडेटरी फॉर एजेंट टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन because he is doing this is on behalf of that person। तो अगर मेरा प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है और एजेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं चलेगा प्रैक्टिकली। इसलिए अगर आप किसी का एजेंट करके काम कर रहे हो और अगर आपका प्रिंसिपल इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, देन इट इज मैंडेटरी फॉर एजेंट टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्नओवर। यहाँ पे मैं टर्नओवर 2 रुपए है कि 5 रुपए है, 5 लाख है, 10 लाख है, कुछ भी थिंग मैटर नहीं करते, उनको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं। नेक्स्ट 9, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर आर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड। इसके बारे में ज्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, ये फाइनल में जब आप आओगे तब वी कैन डिस्कस। ओके, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज अ कैटेगरी ऑफ पर्सन, ओके, जिनको रजिस्ट्रेशन इरिस्पेक्ट ऑफ टर्नओवर मैंडेटरीली लेना है, बस इतना ही याद रखना। ओके, जितना काम करे उतना ही बताएंगे। नेक्स्ट 10th कैटेगरी, एवरी पर्सन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल, इसको OIDAR सर्विस ऐसे बोलते हैं। ओके, OIDAR बोले तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया। अगर कोई ऐसा OIDAR सर्विस प्रोवाइडर है, अगेन डिस्कशन ऑफ फाइनल सिलेबस इंटर में नहीं है, सिर्फ OIDAR बोले तो क्या, जैसे नाम रीड करने में बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। इसका एग्जांपल बोलूंगा तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल ड्राइव, ये जो सब हम यूज करते हैं ना, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है आपको। OTT प्लेटफॉर्म जो भी कुछ है वो आप इसमें कवर हो जाते हैं। ओके, अगर ऐसे कुछ सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। और इन 10 लोगों के अलावा all such persons or class of persons as notified by the government on recommendation of the council। इस 10 कैटेगरी के लोगों के अलावा अगर गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी नोटिफाई करता है तो उनको भी सेक्शन 24 एप्लीकेबल हो जाएगा और उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली लेना पड़ेगा। ओके, तो देखो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना है, इसके लिए हमने अभी सेक्शन 22 रीड करा, सेक्शन 24 रीड करा। सेक्शन 22 में क्या बोला है, अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रहा है तो आपके लिए मैंडेटरी है। सेक्शन 24 बोलते कि आपका टर्नओवर क्या है मुझे नहीं पता, अगर आप 24 में फॉल होते हो तो आपका टर्नओवर कुछ भी हो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी। ओके, अब हम इसे सेक्शन 23 बीच का जो छोड़ा था ना वहां पे आ जाएंगे। सेक्शन 23 बोलता है आपका टर्नओवर कितना भी हो रजिस्ट्रेशन देना नहीं है। ओके, सेक्शन 23 क्या बोलता है,
आपका टर्नओवर भले 5 करोड़ 10 करोड़ भी हो, अगर आप 23 में हारते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एट ऑल. ओके, समझ में आ गया. सो रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं, इस क्वेश्चन को आंसर करने के आपको 22, 23 और 24 तीनों सेक्शन एक साथ इंटरप्रेट करने पड़ेंगे. समझ में आ गया. सेक्शन 23, persons are not at all liable for restriction even if they have turnover of 500 crore, 5000 crore, 50,000 crore. इतना भी टर्नओवर हो, रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल नहीं हो. ओके, कौन कौन से लोग हैं. फर्स्ट वन, पर्सन्स एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नॉट लायबल टू टैक्स. और बोलिए अगर आप एक्सक्लूसिवली ऐसे गुड्स या सर्विस में डील करते हो जो जीएसटी से एग्जम्प्ट है, ओके, या फिर उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, समझ में आ गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लिकर डीलर. ओके, लिकर डीलर, लिकर जीएसटी में आता है क्या, जीएसटी एप्लीकेबल होता है, लिकर पे नहीं होता है. तो अगर लिकर का कितना भी टर्नओवर हो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. ओके, और सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डॉक्टर. डॉक्टर की जो सर्विसेज है वो जीएसटी से एग्जम्प्टेड है. डॉक्टर का टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना. ओके, अंडरस्टूड. तो ऐसे अगर आप एक्सक्लूसिव, वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सक्लूसिव है. अगर मैं कुछ टैक्सेबल और कुछ एग्जाम ऐसा मैं करता हूँ तो ये बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा. अगर मैं एक्सक्लूसिवली एग्जाम अप्लाई करता हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, सेकंड कैटेगरी, किसको लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड. अगर मैं एग्रीकल्चर, अगर मैं फार्मर हूँ तो मेरा फार्म से जो प्रोड्यूस होता है उसका जो मैं सेल करता हूँ उसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. फार्मर किसको बोलना है, इंडिविजुअल और एचयूएफ. इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन देखा था वही है यार. ओके, इंडिविजुअल और एचयूएफ वो अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ओन लेबर या फिर बाय लेबर ऑफ द फैमिली और बाय सर्वेंट्स ऑन वेजेस पेबल इन कैश और काइंड और बाय हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन और द पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली. वो खुद काम करता हूँ या फैमिली मेंबर के साथ काम करता हूँ या फिर वेजेस पे उसमें कुछ लोग रखे हैं उनके थ्रू वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन कैरी करता है. तो इसको एग्रीकल्चर बोलना है. ओके, देखिए इसमें सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर होता है. अंडरस्टूड. सो लेट्स से अगर कोई ऐसी कंपनी है और वो कंपनी अगर उसका ट्री मतलब ये टी प्लांट्स का गार्डन है तो वो एग्रीकल्चर नहीं हो जाएगा. तो एग्रीकल्चर होने के लिए आपको इंडिविजुअल एचयूएफ होना जरूरी है. ओके, तो ऐसे जो लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा. ठीक है, और गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोग बताया है कि इनको रजिस्ट्रेशन नहीं, इनको नोटिफाई किया है कि इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना. पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई. देखिए, पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज मतलब मेरा आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर हो रहा है. तो सपोज आई एम जीटीए और मैंने 12% का ऑप्शन नहीं लिया है तो 5% का ऑप्शन है मतलब वो रिवर्स चार्ज में जाएगा. इफ आई एम ट्रांसपोर्टर देन इन ईच ऑफ माय ट्रांजैक्शन मेरे किसको टैक्स पे करना है, रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है. तो मुझे क्यों जरूरत है रजिस्ट्रेशन लेना, राइट. सो ऐसे जो लोग हैं वो अगेन 23 में कवर जाते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है. राइट, ठीक है. नेक्स्ट, पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अप टू 20 lakhs. राइट, इसका मतलब देखो, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई गुड्स अगर आप कर रहे हो तो आप 24 में कवर हो जाते हैं और आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. लेकिन अगर आप टैक्सेबल सप्लाई ऑफ क्या कर रहे हो, सर्विसेज कर रहे हो, एक्सक्लूसिव सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो और अगर आपका टर्नओवर 20 लाख थ्रेशोल्ड से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना. समझ में आ गया. देखो, इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स का कर रहे हो तो 24 में आता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. लेकिन अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और अगर आपका टर्नओवर अप टू 20 lakhs है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. अब एक बात आपको याद रखनी है, जहां चाह मैं भी 20 lakhs बोलता हूं इसको जोड़ के 4 स्टेट में वो 10 लाख आने वाले हैं. क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, इसमें वो 10 लाख बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 lakhs.
मैंने बोला था ना कुछ हैंडीक्राफ्ट गुड गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं। तो अगर मैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई करता हूँ, वहां पे 24 में हमने जो एंट्री पढ़ी थी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में, वहां पे हमने क्या देखा था, को पर्सन मेकिंग इंटरस्टेड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड एंड योर टर्नओवर इज अप टू 20 lakhs देन यू आर नॉट लायबल। अगर 20 लाख एक्सीड हो जाता है तो आपको लेना है। ओके, अगेन 4 स्टेट में 10 लाख। देन कैजुअल टैक्स, सीटीपी बोले तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स अप टू 20 लाख। देखो 24 में क्या था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्नओवर, लेकिन अगर आप ऐसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो जो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स या नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स का सप्लाई कर रहे हो और अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं। ओके, अंडरस्टूड। तो ये कैटेगरी ऑफ पर्सन जो है जिनका टर्नओवर कितना भी हो रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल नहीं होते। अंडरस्टूड। तो 22, 23 एंड 24 का कलेक्टिव रीडिंग जब आप करोगे, ओके, तब आपको पता चलेगा कि किसी को रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन 22 में लायबल नहीं हो रहा हो रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वो 24 में हो सकता है, और फिर 22 में उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है लेकिन वो 23 में एग्जाम हो सकता है। तो तीनों सेक्शन एक साथ आपको रीड करने हैं और फिर आपको कंफ्यूजन निकालना है कि अगर वेदर इज लायबल और नॉट लायबल। ठीक है, ये क्यों करना है ऐसा, देखो देयर इज अ कांसेप्ट, देयर आर सम रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। आपके सिलेबस में है आई थिंक लॉ के इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये रहता है, इसमें अलग अलग से रूल दिए है कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है। उसमें देयर इज अ रूल ऑफ, इसको बोलते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब किसी लॉ के अलग अलग प्रोविजंस एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में अगर बोल रहे हैं तो आपको वो सभी सेक्शन के प्रोविजन कंप्लाई हो इस तरह से उसे इंटरप्रेट करना है, समझे। इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 22 भी देखना है, 23 भी देखना है, 24 भी देखना है और उनका कलेक्टिव रीडिंग करके आपको डिसाइड करना है कि किसी को रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना। अंडरस्टूड, यहां तक समझ में आ गया सबको क्या होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल, सेक्शन 25 इट बेसिकली टॉक्स अबाउट प्रोसीजर फॉर जीएसटी। ओके, प्रोसीजर क्या पता है किसी ने, किसी के घर में मतलब ऐसा कोई ये फैमिली से कोई है तो ये जीएसटी का एक वेबसाइट होता है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है सब यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी का वेबसाइट होता है, तभी पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है। तो आपको सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। ओके, फिर आप वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पैन नंबर डालोगे, आपका नाम डालोगे, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल डालोगे। वो सबमिट करने के बाद सबसे पहले आपको ओटीपी आता है, एक ईमेल पे एक मोबाइल पे पहले से। वो ओटीपी डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, उसमें सब इंफॉर्मेशन जो कुछ पूछा है वो देना है हमें। क्या देना पड़ता है बेसिकली मैं बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल योर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप हो तो आपको पार्टनरशिप डीड अटैच करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी हो तो आपको एमओयू एओए मतलब एमओए अटैच करने पड़ेंगे। अगर आप एलएलपी हो तो एलएलपी का डीड अटैच करना पड़ेगा। इफ यू आर ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। फिर बेसिकली व्हाट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आपको प्रूफ देना है। सेकंड थिंग आपको देना है कि आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन है, मगर आपके स्टेक होल्डर्स कौन है। स्टेक होल्डर बोले तो प्रोप्राइटरी में तो एक ही पर्सन रहता है, अगर पार्टनरशिप है तो सभी पार्टनर के डिटेल आपको देने हैं, अगर आपकी कंपनी है तो सभी डायरेक्टर्स के डिटेल आपको देने हैं, अगर ट्रस्ट है तो सभी ट्रस्टीज के डिटेल देने हैं। मतलब वो आपका बिजनेस मैनेज कौन कर रहा है उन सभी का नाम, उसका एड्रेस, उसका पैन, उसका आधार, उसका फोटो, सब केवाईसी देना पड़ता है। उसके बाद आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन रहने वाले हैं। ठीक है, प्रोप्राइटरी के केस में तो ये कुछ देना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो खुद ही ओनर है, खुद ही ऑथोराइज सिग्नेटरी है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है कि 4 पार्टनर से किसी एक को सिग्नेटरी की अथॉरिटी दी है, तो फिर डायरेक्टर में से 10 डायरेक्टर में से किसी एक डायरेक्टर को ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाया है, तो उसका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। पार्टनरशिप बन रहेगा तो अथॉरिटी लेटर उसका आपको देना पड़ेगा। अगर आप कंपनी के बारे में ये बोल रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी देनी पड़ेगी कि इस डायरेक्टर को हमने ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट किया है। अंडरस्टूड।
तो वो डिटेल देने पड़ते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देने हैं कि आपको आपके प्लेस ऑफ बिजनेस के प्रूफ देने हैं। व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बिजनेस? ओके, सो अगर आपका ओन प्लेस ऑफ बिजनेस है तो क्या दे सकते हो आप वहाँ का म्यूनिसिपल टैक्स का रिसिप्ट दे सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो जहाँ पे आपका एड्रेस नहीं है। अगर आप रेंटेड प्रीमाइसेस में काम कर रहे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना है। ओके, या फिर ऐसा है कि किसी फैमिली मेंबर के नाम पे कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो, तो वहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो तो फैमिली मेंबर का कंसेंट लेटर आपको लेना है, वो आपको अटैच करना है। सो आपके प्लेसेस ऑफ बिजनेस जितने जितने भी रहेंगे उस हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस का आपको क्या देना होता है, एड्रेस प्रूफ देना होता है। इसके बाद जो सभी प्लेसेस है वो आपको जियो कोड करने पड़ते हैं। जियो कोड मतलब मैप, जैसे गूगल मैप पे हम कोई प्लेस ऐड करते हैं ना, ऐसा मैप दिखता है वहाँ पे। उस मैप में आपके अल्टीट्यूड लैटिट्यूड क्या है वो आपको मार्क करने पड़ते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, ये क्यों करना पड़ता है कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को आना है विजिट के लिए आपके यहाँ पे तो वो मैप लगा के आते हैं, तो फाइंड करने में इजी हो जाएगा। सिर्फ प्रूफ देके या सिर्फ ऐसे लाइट बिल अटैच करने की वो प्लेस फाइंड करने में डिफिकल्टी होती है। इससे अच्छा उसको आपको मैप पे टैग करना पड़ता है। ठीक है, वो सब आपको देना है। उसमें आपको देना है कि आपका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है एंड एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस कौन कौन सा है। ओके, इसके बाद आप जिस भी गुड्स या सर्विस में डील करते हो उसमें मेजर मेजर 5 आइटम्स जो आपके हैं इसके एचएसएन कोड आपको देने पड़े। ओके, या फिर आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको एसएससी कोड जो है वो देने पड़ते हैं। ओके, तो वो सब डिटेल्स आपको सबमिट करना है। इसके बाद आपको आपके बैंक डिटेल्स सबमिट करने होते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसका प्रूफ अटैच करना होता है, कैंसिल चेक का कॉपी या फिर बैंक स्टेटमेंट तो क्यों देना है। अगर कल आप जाके जीएसटी नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करता है, वो डायरेक्टली पैसे वसूल करता है। अरे इसके लिए गवर्नमेंट का डिटेल होना जरूरी है कि मेरा बैंक कहाँ पे है। तो ये सब डिटेल देने के बाद में एक ओटीपी से मुझे ये सब डिटेल सबमिट करने पड़ते। ओके, मैंने सबमिट करने के बाद ऐसा होता है कि आई हैव टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। मतलब आधार नंबर आपको देना है और आपका आइडेंटिटी जो है वो आधार के वेबसाइट से मैच होगा और वो आधार ओटीपी से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वो करने के बाद जीएसटी ऑफिसर के डेस्क पे वो एप्लीकेशन जाता है। ठीक है, वो जाने के बाद अगर ऑफिसर देखेगा कि इसमें सब कुछ प्रॉपर है क्या, अगर है तो ऑफिसर विल अप्रूव योर रजिस्ट्रेशन और आपको आपके मेल पे डायरेक्टली जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसमें अगर ऐसा है कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया है तो विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफिसर हैज टू टेक एक्शन। पहले ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट के ऑफिसर पे ऐसे टाइम लिमिट नहीं था इतने दिन में लेना है वगैरह। इसमें ऐसा कि 7 वर्किंग डेज में इसको एक्शन लेना है। अगर वो एक्शन नहीं लेता तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव करता है। ओके, लेकिन ऐसा है कि अगर ऑफिसर को उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स डिफेक्टिव लग रहे हैं या फिर उसको कुछ चीजों के बारे में क्लैरिटी जरूरी है तो ही विल इशू योर डिफेक्ट मेमो। वो आपके मेल पे आ जाता है, वो बोलता है कि ये एडिशन सबमिट करो, तो वो भी आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। ठीक है, और वो सबमिट करने के बाद फिर से ऑफिसर देखेगा कि वो सब प्रॉपर है क्या, अगर है तो वो अप्रूव कर देगा, नहीं है तो वो रिजेक्ट करेगा। बाद में ऐसे नहीं, बार बार आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं पूछता रहेगा। एक बार उसने पूछा अगर आपने दे दिया वो विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन एंड इफ यू रिजेक्ट देन फ्रॉम स्टार्ट यू हैव टू डू इट अगेन। ओके, ऐसा सब करना है। सो जीएसटी में एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ओके, टेबल के ऊपर से नीचे से कुछ नहीं है जीएसटी में। ओके, व्हाटएवर यू हैव टू डू यू हैव टू डू ऑनलाइन। आपको ऐसा प्रोसेस है कि किस ऑफिसर के पास आपका एप्लीकेशन गया वो आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो यू डोंट नो वो सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि सपोज आई एम सिटिंग इन रत्नागिरी, अगर मैं एप्लीकेशन करता तो रत्नागिरी के किसी ऑफिसर के पास हो जाता और उसमें कुछ मतलब ऐसा झोलझाल करते थे लोग। अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये पूरा सेंट्रलाइज प्रोसेस किया है। सेंट्रलाइज प्रोसेस का मतलब ऐसा है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है दैट कम्स अंडर पुणे कमिश्नरेट। पुणे कमिश्नरेट के अंडर कौन सा, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एंड गोवा, इतने सब रीजन पुणे कमिश्नरेट के अंडर आते हैं। तो यहाँ कहीं से भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का आता है ना, तो ये पुणे जीएसटी ऑफिस में वहाँ पे एक डेस्क है, वहीं पे वो एप्लीकेशन आता है। वहाँ पे जो 3 बंदे बैठे हैं उनको एक ही काम है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना, यही करना।
और इतना लोड वहाँ पे मतलब डेली अराउंड 100 रजिस्ट्रेशन इनके पास रहते हैं, तो वो देखते हैं मतलब सेंट्रलाइज प्रोसेस। तो ऐसे पूरे ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये सभी यहाँ पे दिया हुआ है। सीटीपी का प्रोविजन में अलग से आपको बताऊंगा। ओके, ये प्रोसीजरल पार्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने में। इसमें दो तीन चीजें आपको जो अलग है वो बोलना जरूरी है कि इन केस ऑफ एसीजेड यूनिट सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेटेड आउटसाइड एसीजेड इज मैंडेट। एसीजेड क्या पता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज बेसिकली गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि उस जोन अगर एसीजेड का आपका अप्रूवल आता है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे मिलेगी, पानी कम रेट पे मिलेगा, बाकी सब आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के फीस में से एग्जाम्पशन होगा। ओके, ये किसके लिए है? कि इसके लिए ऐसा है कि फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, so एसीजेड आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया एंड जनरेट फॉरेन करेंसी। ठीक है, इसमें अगर ऐसा है कि सपोज I'm in two units. One unit is located at say Karve Road, and one unit is located in say Injewadi ACG. ओके, तो मतलब क्या है, मेरे ही दो यूनिट हो गए, एक एसीजेड यूनिट है, एक आउटसाइड एसीजेड यूनिट है। तो जीएसटी में ऐसा है कि इफ यू आर हैविंग टू यूनिट्स, वन ऑफ विच इज एसीजेड एंड अनदर इज अदर देन एसीजेड, देन आपको एसीजेड यूनिट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और नॉन एसीजेड के लिए अलग से लेना। अंडरस्टूड? ओके, क्या करना है आपको? जब आपके एसीजेड एंड आउटसाइड एसीजेड ऐसे दो यूनिट है तो आपको, और लेट से आपके 4 एसीजेड यूनिट है और 4 अदर देन एसीजेड यूनिट है, आपके कारण पड़ेगा 4 एसीजेड के 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशन और नॉन एसीजेड का एक रजिस्ट्रेशन ऐसे सेपरेटली लेना पड़ेगा। इसका रीजन ऐसा है कि जीएसटी नंबर से बहुत सारी चीजें आपकी लिंक्ड है, जो इंसेंटिव जो है फिर मिलता है ना एसीजेड को, वो ठीक है। तो इसलिए आपको ये जरूरी है कि एसीजेड के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन, तो ये एक डिफरेंट थिंग है। अनदर डिफरेंट थिंग विच यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट की हर एक स्टेट में नंबर लेना है जहाँ पे आप टैक्सेबल अप्लाई करते हो, वो हमने देखा। इसलिए ऐसा है कि आपको हर एक स्टेट में अलग अलग से एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं महाराष्ट्र में अप्लाई करता हूँ तो महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन मुझे मिलेगा, गुजरात के लिए अलग से एप्लीकेशन है, दिल्ली के लिए अलग से एप्लीकेशन है, ऐसा आपको हर एक स्टेट के लिए सेपरेटली यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, इसके बाद देखो सेक्शन 22 क्या बोलता है कि आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसा है? मैंडेटरी है। लेकिन अगर ऐसा है कि मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, ओके, लेकिन बाय ऑन माय ओन विश मुझे रजिस्ट्रेशन लेना तो ले सकते हो, क्या ले? देयर इज अ प्रोविजन फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आल्सो। तो वॉलंटरीली मतलब आप किसी भी जीएसटी लॉ के प्रोविजन के अंडर लायबल नहीं होते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, सिर्फ अगर आपको लेना है तो आप रजिस्ट्रेशन इसमें ले सकते। लेकिन देखो ऐसा है कि वॉलेंटरीली आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं हो रहा है फिर भी आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो गवर्नमेंट क्या करेगा? प्राइस देगा क्या? आपको नहीं देगा। गवर्नमेंट बोलता है कि आपने वॉलेंटरीली नंबर लिया है, एक बार आपने नंबर लिया, जैसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाले वैसे आप ही, देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। जैसे प्रोविजन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाले को एप्लीकेबल है, ऐसे ही सब प्रोविजन वॉलेंटरी वालों को भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ऑन सेम पैन अगर रहेंगे, एक ही पैन नंबर पे एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आपके हैं तो ईच पर्सन विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट पर्सन। ओके, ये था वो सेक्शन 25 डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 जो हमने रीड किया तो यहाँ पे। सेक्शन 25 में क्या बोला कि अगर एक पैन पे एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन एक ही स्टेट में हो या एक के अलग अलग स्टेट में हो तो यू विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट पर्सन अंडर जीएसटी। ओके, देन द पैन इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया है। आपका अगर पैन नहीं होता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। सिर्फ कुछ स्पेशल केस में देखो ऐसा है कि टीडीएस के प्रोविजन जो एप्लीकेबल होते हैं जीएसटी में, वो बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट एजेंसी को एप्लीकेबल है, और गवर्नमेंट एजेंसी का तो कोई पैन रहता नहीं है, तो दैट इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी ना, तो इनका कोई पैन नहीं रहता है। लेकिन टीडीएस के लिए इनकम टैक्स में इनको जैसे इनकम टैक्स में पैन है ना हमारा, ऐसा एक टैन भी रहता है, इनको बोलते हैं टैक्स डिडक्टिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब जैसे जीएसटी में टीडीएस है वैसे इनकम टैक्स में भी है। इनकम टैक्स में टीडीएस कट करने के लिए आपके पास एक टैन होना जरूरी है।
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पैन नहीं होता लेकिन टैन होता है, तो उनको केस में ऐसा है कि अगर आपको टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है, यू आर अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ पैन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में आपको पैन एप्लीकेबल नहीं होता। देन आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ओके, तो आधार ऑथेंटिकेशन के बिना कोई भी एप्लीकेशन अभी आपका प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारे निश्चित किए हैं लोगों की वजह से ये आया है, तो मैं पॉइंट जब आ जाएगा तो बताऊंगा। नाउ देखो, इफ अ पर्सन इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बट फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ऐसा कि कोई पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, उसका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख क्रॉस हो रहा है, वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो प्रॉपर ऑफिसर बोले तो जीएसटी डिपार्टमेंट का जो आपके जुरिडिक्शन जिस ऑफिसर के अंडर आता है वो ऑफिसर, ओके, तो प्रॉपर ऑफिसर कैन ग्रांट इन सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, सुओ मोटो बोले तो खुद से रजिस्ट्रेशन दे सकता है। नॉर्मली जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद रजिस्ट्रेशन लेता है, लेकिन अगर ऐसा है कि आप लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है लेकिन आपने नंबर नहीं लिया जी, तो और अगर ये ऑफिसर के ध्यान में आता है तो ऑफिसर खुद से विदाउट योर एप्लीकेशन आपको जीएसटी नंबर अलॉट कर सकता है। ओके, नाउ देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर सम, देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इसको हम बोलते हैं, ओके, या फिर मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ हमारे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये सब वर्ड आपने सुने हुए, तो एक ऐसे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो पूरी दुनिया के मतलब वेल बीइंग के लिए बनाए हुए है। इसलिए ऐसा है कि ये जो यूनो या फिर यूनो के एजेंसी या फिर ये जो लोग है ना, उनको किसी भी कंट्री में सब्जेक्ट टैक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा जनरल ये है। इसलिए अगर आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो तो यूनो खुद कर रहा है या फिर मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज इम्यूनिटी एक्ट, इसमें कौन आता है वो सब आते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ठीक है, वो सब जो है ना, रेड क्रॉस, ये सब नाम सुने होंगे आपने। तो ऐसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको भी अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इंडिया में, तो इनके लिए यूआईएन होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। बाकी के जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनके लिए GSTIN होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये GSTIN आपने देखा होगा शॉप्स के नेम बोर्ड पे या साइन बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है, ओके। सो नॉर्मल लोगों के लिए जो होता है उसको बोलते हैं GST या GSTIN या GST, ओके। लेकिन ये जो यूनो के लोग हैं उनके लिए जो नंबर रहता है उनको क्या बोलते हैं, UIN, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, उनके लिए सेपरेट प्रोविजन। ये सब जो प्रोसेस मैंने बताई थी ना आपको, ये सब इसे चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है, तो बाद में आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो चार्ट में सभी के सभी मतलब जो भी मैंने प्रोसीजर पूरा आपको बताया तो सब इसमें दिया है, ओके। कोई डाउट्स है अभी तक? ये फ्लो चार्ट आपकी बुक में भी है, ठीक ना। अब ये प्रोसीजर में थोड़ा एक पॉइंट ऐसा बोलना है कि अगर कोई एप्लीकेंट आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली अंडरगो करता है, ओके, तो ऐसा है कि विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफिसर को आपके एप्लीकेशन पे एक्शन लेना पड़ता है। अगर 7 दिन में उसने एक्शन नहीं लिया तो फिर क्या होगा, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली अप्रूव योर एप्लीकेशन एंड यू आर ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन। हमारे बहुत सारे केस में हुआ है, ऑफिसर एक्शन ही नहीं लेता, तो फिर 7वें दिन ऑटोमेटिकली ऑफिसर को बाईपास करके सिस्टम में आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दिया। इसमें क्या है कि 7 वर्किंग डेज इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब अगर आपने फ्राइडे को एप्लीकेशन किया, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है तो वो काउंट नहीं हो जाता, मंडे दूसरा दिन आ जाएगा। तो इस अंडर को आधार ऑथेंटिकेशन देन विद इन 7 डेज आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूव हो जाएगा अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो। नेक्स्ट इफ ही फेल्स टू ऑब्टेन आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन आप नहीं कर पाते तो ये जो 7 दिन का टाइम है वो 30 दिन हो जाता है। 30 दिन तक का टाइम लिमिट ऑफिसर को मिलता है। क्यों ऐसे 30 दिन क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हो इसका मतलब आपकी वैलिड आइडेंटिटी है। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो कुछ तो आपका आइडेंटिटी के किसमें प्रॉब्लम है, इसलिए ऑफिसर को टाइम मिलना जरूरी है कि वो आपको आपकी डिटेल्स वेरीफाई कर सके। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन इज
person undergoes Aadhaar authentication but is identified by the GST system as a risky applicant. ऐसे कुछ लोग हैं जिनके नाम पे जीएसटी में फ्रॉड की हिस्ट्री है, ओके, या फिर जो ऐसे कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, ऐसे कुछ लोगों को जीएसटी डिपार्टमेंट ने रिस्की एप्लीकेंट करके आइडेंटिफाई किया है. अगर ऐसा कोई रिस्की एप्लीकेंट भले वो आधार ऑथेंटिकेशन करता भी है, ओके, फिर भी उस केस में वो 7 वर्किंग डेज का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा. तो इसमें ऐसा है कि ऑफिसर जो है ना, तो ऑफिसर आपके प्लेस को विजिट भी कर सकता है देखने के लिए कि आप जेन्युइनली बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो देखना जरूरी है. ओके, क्यों जरूरी है? देखो ऐसा है कि जीएसटी में सभी का सभी प्रोसीजर ऑनलाइन है रजिस्ट्रेशन, तो इसका फायदा उठा के बहुत सारे लोगों ने जीएसटी में फेक रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किए. फेक रजिस्ट्रेशन बोले तो कुछ भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं लेकिन जीएसटी नंबर लिया है. अब क्यों लिया है? तो उसमें दे यूज टू यूज अ मॉडस ऑपरेंडी, जिसको बोलते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग. सर्कुलर ट्रेडिंग बोले तो क्या? देखो, अगर ऐसा कि हम देखो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ओके, तो हम 6 लोग क्या करते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करते हैं. मैं आपको गुड्स बेचता हूँ, बेचता मतलब फिजिकली कुछ नहीं बेचता, सिर्फ इनवॉइस आपके नाम से करता हूँ, ऐसे फेक इनवॉइस, ऐसे हाइपोथेटिकल, ओके. वही इसके बेसिस पे आप आपके आगे कुछ गुड्स सेल करते हो, वही आगे आगे ऐसे करके फिर से वो गुड्स का इनवॉइस मेरे पास ही आ जाए अलग अलग नाम से. इसमें कैसे होता है, वो प्राइस इस तरह से एडजस्ट की हुई रहती है कि किसी को भी कैश में जीएसटी पे नहीं करना, क्योंकि परचेस का जीएसटी में लेस करने को अलाउड है ना. तो ऐसा ये पूरा करते हैं, सिर्फ पेपर ट्रेल ऐसे करके लोगों ने 500 500 1000 कोटी के फेक. आपको इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ऐसा हुआ कि ऑन रिकॉर्ड ये सब लोगों ने क्या किया, ये सब किया प्रॉपरली, उसका टाइम पे जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया, सो ऑन टाइम. ऐसा होता है कि मेरे 1000 करोड़ के ट्रांजेक्शन का पेपर ट्रेल क्रिएट होता है. उसके बाद मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को बोलता हूँ कि मेरा 1000 करोड़ का टर्नओवर है, आप मुझे लोन दे दो. तो बैंक बोलेगी आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने 1000 करोड़ का टर्नओवर किया है? मेरे पास जीएसटी रिटर्न है, जीएसटी पोर्टल पे सब डेटा वेरीफाई होता है. ओके, वो होने के बाद बैंक आपको लोन सैंक्शन करती है. ओके, बैंक को ऐसा कि प्लेस ऑफ बिजनेस देखना है तो कुछ तो आप इतने टाइम के लिए मैनेज करके नहीं कर सकते हो बैंक से, तो बैंक कभी सर्टिफिकेट नहीं करते हैं, वो बताते हैं. ओके, तो उसको होने के बाद बैंक मुझे लोन देती है, लोन के बेसिस एक बार मुझे मिल गई तो मैं भाग जाता हूँ. ओके, अंडरस्टूड. ऐसे बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी लोगों ने यूज किए है, और ये सब फ्रॉड कितने के पता है क्या? ऐसे छोटे अमाउंट नहीं है, 1500 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़, तो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड लोगों ने किए. ओके, ऐसे लोगों ने इतना भी कुछ कुछ इसमें किया कि डॉक्यूमेंट्स फोर्स करके सबमिट करना चाहिए. अगर कोई रेंट एग्रीमेंट है तो उसमें सिर्फ नाम बदलो, एड्रेस बदलो, ये बदलो, वो बदलो, लीगल डॉक्यूमेंट से भी चेंज किया और एप्लीकेशन किया और फिर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन किया. और ऐसे बहुत सारे फ्रॉड किए. या फिर ऐसा है कि मान लो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सपोज आई एम अ डीलर, जेन्युइन डीलर, ओके, मैं कुछ गुड्स में डील कर रहा हूँ, ऐसा है कि किसी एक में मेरा परचेज बहुत कम है लेकिन सेल बहुत ज्यादा है, तो मुझे क्या करेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा कैश में, है. फिर वो मुझे अवॉइड करना है तो मैं ऐसे ही फेक बिल्स परचेज करता हूँ किसी से, तो मेरे नाम पे जीएसटी में डाल दे जाऊंगा, मैं फेक बिल परचेज करता हूँ. ओके, और फेक आईटीसी क्लेम करके फ्रॉड करता है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने किया. ओके, तो वो सब अवॉइड करने के लिए ये रिस्की एप्लीकेंट या आधार ऑथेंटिकेशन और वैसे एडिशनल जो चीजें हैं वो इसलिए आई है. कुछ जगह पे ऐसे की जीएसटी डिपार्टमेंट इंसिस्ट कर रहे तो ऑफिसर फिजिकली विजिट करता है आपके प्लेस ऑफिस, देखता है आप जेन्युइनली बिजनेस करते हो या नहीं कर रहे हो, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है. तो इसलिए ये 30 दिन का जो टाइम लिमिट है ये रखा हुआ है. Next, this is section 25, entirely procedural aspect. Okay. Now section 26, डीम्ड रजिस्ट्रेशन. डीम बोले तो मैंने ऐसे बोला ना कि सीजीएसटी एक्ट, एजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, हर एक एक्ट के अंदर हर एक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. तो ये लॉ क्या बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन अंडर एनी वन ऑफ सीजीएसटी, एजीएसटी, यूटीजीएसटी shall be deemed to be registration under all other GST. लेकिन अगर किसी एक एक्ट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होता है जीएसटी को, तो इट इज डीम्ड टू सभी एक्ट के अंदर रिजेक्ट. डीमिंग प्रोविजन, रजिस्ट्रेशन तो एक ही है.
ओके, तो सिर्फ मशीनरी प्रोविजन है, इसमें कुछ अलग से डिस्कस करने के लिए नहीं है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज concept of CTP and NRTP. CTP बोले तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, NRTP बोले तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये क्या होता है? Let's try to understand. Okay. See, मान लो I am dealing in some automobile components and I am having my factory at let's say Tata MID. Okay. वहाँ पे मैं कुछ ऑटोमोबाइल के लिए पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। और अगर ऐसा है देखो कि दिल्ली में हर साल ऑटो एक्सपो होता है, पता है आपको? एग्जीबिशन में से बहुत सारे नई कार्स लॉन्च करते हैं लोग, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है। ओके, तो मान लो ऐसे कि मैं उस एग्जीबिशन के लिए मेरा स्टॉल दिल्ली में लगाने वाला हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं दिल्ली में जाता हूँ और वहाँ पे कुछ गुड्स सेल करता हूँ। एग्जीबिशन में ऐसा होता है ना, मेरा सेल हो जाएगा ना एक्चुअली वो गुड्स वहाँ पे, राइट? तो फिर ऐसा है कि महाराष्ट्र में तो रजिस्टर्ड हूँ मैं जीएसटी में, मैं दिल्ली में जाके कुछ गुड्स सेल कर रहा हूँ। लेकिन देखो ऐसा बोलो कि दिल्ली में मेरा परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं। ओके, सो आई एम गोइंग टू दिल्ली जस्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। एग्जीबिशन क्या 7-8 दिन का, 10 दिन का रहेगा, 2 महीने का रहेगा। तो टेम्पररी पीरियड के लिए ऐसे स्टेट में जा रहा हूं जहां पे मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ओके, क्योंकि देखो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में होता तो वो ऑलरेडी रजिस्टर हुआ होता। क्या हो रहा है समझो, मैं ऐसे किसी दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं टेम्पररी पीरियड के लिए वहां पे टैक्सेबल सप्लाई करने वाला हूँ। ऐसी जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अंडरस्टूड? इसको क्या बोलते हैं? कंसेप्ट समझ में आ गया? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या? मैं ऐसे स्टेट में जाके सप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ओके, और जहाँ पे बेसिक टेम्पररी पीरियड के लिए वो सप्लाई का एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ऑन द सेम लाइन, जैसे मैं पुणे से दिल्ली में ऑटो एक्सपो के लिए जा सकता हूँ, वैसे मैं न्यूयॉर्क से भी दिल्ली में आ सकता हूँ फॉर ऑटो एक्सपो। अंडरस्टूड? तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इसका मतलब ऐसा है, ऐसा पर्सन जिसका इंडिया में कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं पे भी उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी नहीं है, लेकिन वो इंडिया के बाहर से टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ गुड्स सर्विसेज सेल करने के लिए इंडिया में आ रहा है। तो जैसे मैं महाराष्ट्र से दिल्ली में जाता हूँ तो मैं होता हूँ सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सेम लाइन अगर मैं न्यूयॉर्क से दिल्ली में आता हूँ तो मुझे क्या बोलेंगे जीएसटी लॉ में? एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? तो बेसिकली सीटीपी एंड एनआरटीपी जो है ना, ये टेम्पररी पीरियड के रजिस्ट्रेशन। ओके, समझ में आ गया? देखो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट सेक्शन 220 ऑफ टीजीएसटी एक्ट सेज कि कैजुअल पर्सन इज अ पर्सन who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both. Okay, तो वो क्या कर रहा है? वो occasionally undertake कर रहा है transaction of goods or services or both. Okay, in the course or furtherance of business, whether principal, agent or in any other capacity, in a state or union territory where he has no fixed place of business. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मैं ओकेजनल ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ और ऐसे स्टेट में कर रहा हूं जहां पे मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। देखो अगर ऐसा है कि अगर दिल्ली में मेरा रजिस्ट्रेशन होता खुद का, तो दिल्ली के ऑटो में उसी रजिस्ट्रेशन के गुड्स सेल कर सकता था ना, तो उसके लिए मुझे अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, राइट? यहाँ पे कैसा है कि मेरा उस स्टेट में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और मैं वहां जाके ओकेजनली सप्लाई के ट्रांजेक्शन करना है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। समझ में आ गया कंसेप्ट? एनआरटीपी क्या होता है? देखो एनआरटीपी इज एनी पर्सन हु occasionally undertakes transaction involving supply of goods or services or both, whether as principal agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India. वहां पे ये बोल रहे हैं सीटीपी में स्टेट का रेफरेंस है, यहाँ पे पूरे इंडिया का रेफरेंस है, नहीं करें, अदरवाइज प्रिंसिपली दोनों सेम है। समझ में आ गया? तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन। ओके,
क्यों रजिस्ट्रेशन के स्पेशल प्रोविजन है? बिकॉज the registration is for temporary period, that is the main issue. Okay, so what are the special provisions? First one, देखो ऐसा है कि फर्स्ट इज अबाउट वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन. नॉर्मल केस में ऐसा होता है कि एक बार मैं अगर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करता हूँ तो उसको ऐसी वैलिडिटी पीरियड नहीं होता, टिल कैंसल इट इज वैलिड. ओके, लाइफ टाइम इसका मतलब मैं खुद से अगर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल जब तक नहीं करता तब तक वो नंबर वैलिड रहता है. ओके, सो देयर इज नो फिक्स वैलिडिटी पीरियड फॉर दैट रजिस्ट्रेशन. अगर मैं नंबर आज लेता हूँ 10 साल बिजनेस करता हूँ तो 10 साल वो वैलिड रहेगा, 20 साल करता हूँ तो 20 साल वैलिड रहेगा. लेकिन सीटीपी एनआरटीपी के केस में ऐसा है कि बिकॉज दे आर कमिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और दे आर कमिंग इन इंडिया फॉर टेम्पररी पीरियड, उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में स्टार्ट डेट एंड एंड डेट दोनों मेंशन किए हुए हैं. समझ में आ गया? बाकी के लोगों में सिर्फ कमेंसमेंट डेट रहता है, वैलिड फ्रॉम रहता है, वैलिड टिल का कोई डेट ब्लैंक रहता है वो कॉलम. ओके, लेकिन इसमें कैसे है, वैलिड फ्रॉम और वैलिड टिल दोनों ये जो है वो सीटीपी के केस में मेंशन किए हुए रहेंगे. सो अगर मेरा 5 दिन का एग्जीबिशन है, 10 दिन का एग्जीबिशन है, तो आज सपोज 16 तारीख है तो 16 फ्रॉम 16 टिल 26 ऐसा स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ रहेंगे. और ये सीटीपी एनआरटीपी के लिए स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 27 में दिए है. ओके, तो उसमें ऐसा है कि इनका वैलिडिटी पीरियड जो है वो कितना हो सकता है कि आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो पीरियड लिखा है वो पीरियड या फिर 90 डेज व्हिचएवर इज अर्लियर. ओके, सो मैक्स टू मैक्स कितने दिन का रजिस्ट्रेशन मेरा हो सकता है? 90 डेज का मेरा रजिस्ट्रेशन हो. लेकिन अगर ऐसा है कि मैं ये जो पीरियड है 90 डेज का वो अनदर 90 डेज तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, फर्स्ट 90 डेज प्लस अनदर 90 डेज. अगर ऐसा होता है कि मान लो 6 महीने का एग्जीबिशन है और वो 6 महीने एक्सटेंड हो गया तो मैं I can get that period extended, okay, for a period of 90 days. Then CTP and RTP can make taxable supplies only after grant of RC. CTP and RTP can make taxable supplies only after grant of RC बोले तो registration certificate. ये पॉइंट के बारे में थोड़ा आपको बाद में बताता हूँ. क्या ये इतना याद नहीं रखो क्या कि सीटीपी एनआरटीपी जब तक उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं होता है उसको वो सप्लाई नहीं कर पाए. ओके, नो, दिस इज स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स. बिकॉज नॉर्मल केस में क्या होता है, पहले जो समझते हैं कि सपोज मैं ये मार्च का मंथ चल रहा है, मार्च के मंथ में मैंने कुछ ट्रांजेक्शन अंडरटेक किए ऑफ सप्लाई. ओके, उसका जो जीएसटी है ना वो मुझे अप्रैल में पे करना पड़ता है गवर्नमेंट. अगर मार्च में कुछ मैं ट्रांजेक्शन करूंगा उसका जो जीएसटी है वो पे करने का डेट 20 अप्रैल रहता है और मैं अप्रैल में वो टैक्स पे कर सकता हूँ. तो फ्यूचर डेट में मैं टैक्स पे करता हूँ नॉर्मल केस में. ये क्यों है? ये देखो ऐसा है कि अगर आई एम हैविंग फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन महाराष्ट्र और अगर मैं जीएसटी पे नहीं करता तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन कम एट माई प्लेस एंड इन्फोर्स मी टू पे द जीएसटी. ठीक है, ये हो सकता है. सीटीपी एनआरटीपी के बारे में प्रॉब्लम ऐसा है, अगर मैं सीटीपी हूँ, मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, 5 दिन का एग्जीबिशन है और 5 दिन में मैंने कुछ सप्लाई किया, जीएसटी पे ही नहीं किया उसका, तो दिल्ली में तो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, तो गवर्नमेंट मुझे कैच करवाएगी क्या? दिल्ली में नहीं कर पाएगी. सिमिलरली अगर कोई पर्सन न्यूयॉर्क से इंडिया में आता है और एग्जीबिशन के बाद चला जाता है न्यूयॉर्क में और वो जीएसटी पे नहीं करता तो क्या होगा? वो उसको गवर्नमेंट कैच कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी. तो गवर्नमेंट को खुद का रेवेन्यू जो है वो इंश्योर करने के लिए इनके केस में, इनको सीटीपी एनआरटीपी केस में इनमें स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स. मतलब इनके केस में अब ऐसा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो अगर ऐसा कि मैं 5 दिन के एग्जीबिशन के लिए वहां पे जा रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट को ये डिटेल्स देने पड़ते कि 5 दिन में मेरा एस्टिमेटेड सेल्स कितना है, उस एस्टिमेटेड सेल पे मेरी कितनी लायबिलिटी जीएसटी से बन सकती है और उतना अमाउंट मुझे गवर्नमेंट को एडवांस में पे करना होता है. अगर वो मैं पे नहीं करता तो मुझे रजिस्ट्रेशन मिलता ही नहीं गवर्नमेंट से. तो मुझे एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, उसके बाद वो मुझे क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा. और अगर ऐसा होता है कि मान लो 5 दिन का एग्जीबिशन खत्म हो जाता है, पहले मैंने एस्टिमेटेड मेरा सेल्स 1 लाख का था, उसके ऊपर 18,000 का जीएसटी अगर आता है
तो मैंने 18,000 एडवांस में डिपॉजिट किया रहेगा। सपोज मेरा एक्चुअल सेल हो जाता है 1 लाख नहीं 2 लाख का होता है या फिर 3 लाख का होता है, तो 3 लाख के ऊपर 18% के 54,000 जीएसटी आता है। उसमें से 18,000 मैंने ऑलरेडी डिपॉजिट किया है, तो बचा हुआ 36,000 मुझे बाद में पे करना पड़ेगा। मुझे ऐसा है कि मुझे लगता था कि 1 लाख का सेल हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो 80,000 का ही हो गया, तो लाइबिलिटी 10,800 का ही आएगा। तो जो ऊपर का एक्स्ट्रा पे किया हुआ मैंने टैक्स है वो मुझे गवर्नमेंट रिफंड करता है। समझ में आ गया? ऐसा स्पेशल प्रोविजन क्यों है इनके लिए? क्योंकि बाद में गवर्नमेंट को झंझट नहीं चाहिए इनको पकड़ने, वेरी मच लॉजिकल। ठीक है, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है? एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। अंडरस्टूड? ओके, एक और प्रोसीजरल पार्ट में हमने सीटीपी का एक पॉइंट ये किया था, क्या स्किप किया था, वो ये सीटीपी एनआरटीपी कैन मेक टैक्सेबल सप्लाई ओनली आफ्टर ग्रांट ऑफ आरटीआर। और एक कनेक्टिंग पॉइंट है, वो तीनों हम एक साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतना समझ, स्पेशल प्रोविजन क्या है समझ में आ गया? नाउ नाउ सम जनरल एस्पेक्ट्स अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपका जीएसटी नंबर कैसे होता है? ओके, सो देयर, ये जो आपका जीएसटी नंबर है ना, वो बेसिकली आपका 15 कैरेक्टर्स का होता है। उसमें पहले 2 कैरेक्टर जो है ना, वो आपके स्टेट कोड रहते हैं। तो ये नंबर से आइडेंटिफाई होता है कि किस स्टेट का नंबर है। तो महाराष्ट्र के लिए 27, गुजरात के लिए 24, तमिलनाडु के लिए 33, तेलंगाना के लिए 37, कर्नाटक के लिए 29, ऐसे हर एक स्टेट के लिए ये स्टेट कोड डिफाइंड है जीएसटी के। ओके, तो पहले 2 इसमें से आपको क्या पता चलता है कि ये कौन से स्टेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद के जो 10 कैरेक्टर है वो आपका पैन होता है। इनकम टैक्स का जो पैन है वो ऐसा का वैसा यहाँ पे आ जाता है। ओके, इसके बाद इसको बोलते हैं एंटिटी कोड। ये एंटिटी कोड में ये जो जेड है ना, ये जेड फिक्स है, चेंज नहीं होता। कोई भी नंबर आप देखो यहाँ पे जेड रहेगा। ओके, ये एंटिटी कोड बोले तो क्या, तो 27 ये पैन, और ये जब 1 में देखता हूँ तो इसका मतलब ये मेरा महाराष्ट्र का पहला रजिस्ट्रेशन। अगर मैं महाराष्ट्र में देखो पुणे के लिए रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, बाद में नागपुर के प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए अलग से लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 आ जाए। या फिर ऐसा है कि मेरा एक रजिस्ट्रेशन था जीएसटी में महाराष्ट्र में, तो मैंने कैंसिल कर दिया, बाद में फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर दिया, वो भी यहाँ पे 2 आ जाए। तो इससे पता चल रहा है कि ये इसका नंबर क्या है रजिस्ट्रेशन, ये पहला रजिस्ट्रेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। नऊच्या नंतर काय गेलं तर बघायला लागेल, त्याच्याच नाही, आज हेड पण चेंज होईल। जेड आता उसमें कैसा है कि जेड ये जो है ना, ये 6 कैरेक्टर है। अगर मैं डिडक्टर रहूंगा तो यहाँ पे डी आ जाए जेड के जगह, तो आइडेंटिफाई। और ये जो लास्ट वाला एक जो चेकसम कैरेक्टर बोलते हैं ना, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी नंबर और एनी अल्फाबेट ऑल्सो, वो रैंडमली कुछ भी हो सकता है। ओके, तो पहले 2 स्टेट के कोड, दूसरे 10 कैरेक्टर आगे वाले मेरा पैन, उसके बाद ये एंटिटी कोड 2 डिजिट का, 2 कैरेक्टर का, और लास्ट वाला रैंडम करता है। ऐसा पूरा 15 डिजिट का मेरा जीएसटी का नंबर होता है, 15 डिजिट और 15 कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर का सिंटैक्स होता है। और मुझे जो सर्टिफिकेट है वो जीएसटी REG 06, ये जो फॉर्म का नंबर है, देखो मैं एप्लीकेशन करता हूँ REG 01 करके फॉर्म होता है इसमें, मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ पे मिलता है? REG 06 में मिलता है। ओके, तो ये जीएसटी नंबर मेरा ऐसा, तो 27AACC11113 दिस विल बी माय जीएसटी नंबर। अब देखो ऐसा प्रोविजन है कि आपके हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस पे जो आपने बोर्ड लगाया हुआ होता है, साइन बोर्ड लगाया हुआ रहता है, उसमें आपका जीएसटी का नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है। बहुत सारे शॉप्स पे आपने देखा होगा उनके नेम बोर्ड के जीएसटी नंबर भी लिखा हुआ है। Specific provision. Every registered person shall display his registration certificate in the prominent location as principal place of business and every additional place of business. EPOB बोले तो principal place of business, APOB additional places of business. तो आपको आपका जीएसटी नंबर लिखना है बोर्ड पे, और आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डिस्प्ले करना है। तो जो काउंटर पे बंदा बैठा हुआ रहता है उसके पीछे नॉर्मली वो सब लिखा हुआ रहेंगे। Okay, the Indian certificate or वो सब, क्योंकि by law it is mandatory. Further, GST has also to be displayed on the name board exhibited at the entry of
विद प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल पेपर। तो जो बोर्ड रहेगा उस पर लिखना मैंडेटरी है। देखो जब कोई भी जीएसटी ऑफिसर आपके प्लेस को विजिट करता है, अगर ये लिखा हुआ नहीं रहता ना, ही विल डायरेक्टली इशू यू पेनल्टी नोटिस ऑफ 20,000 रुपीज। फिर 10,000 का पेनल्टी है जीएसटी लॉ में, अगर आप ये प्रेजेंट में डिस्प्ले नहीं करोगे। तो इसलिए ये आपको डिस्प्ले करना मैंडेटरी। अंडरस्टूड? ओके। नाउ देयर इज अ स्पेशल मेंशन ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 10 ऑफ जीएसटी। ये समझ लो क्या है, व्हाट इज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। देखो ऐसा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब मैं मैंडेटरी हो जाता हूँ, जब मेरा नॉर्मल कितनी, जब मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो। ओके, तो देखो आज अगर मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो मैं इमीडिएटली तो नंबर कैसे ले पाऊंगा, मुझे पता होना चाहिए मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया है। इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है कि व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके, व्हाट दे आर सेइंग कि व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मैं कब लायबल हो जाऊंगा, अगर आज मेरा टर्नओवर 40 लाख 20 लाख क्रॉस है तो मैं आज लायबल हो जाऊंगा। ओके, so when you become liable for registration and you apply for registration within 30 days from becoming liable, देखो समझ लो क्या, मैं आज लायबल हो गया, यहां से मुझे 30 दिन का पीरियड उन्होंने दिया है कि इफ यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन दैट 30 डेज, then the effective date of registration will be the date when you become liable for registration। मतलब देखो आज 16th of मार्च है, टुडे आई बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो मुझे 16th of अप्रैल तक का टाइम लिमिट है फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अंडरस्टूड? क्यों कैसे है ये, नॉर्मली ये ऐसा है कि अगर मैं एप्लीकेबल हो जाता हूँ तो मुझे किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा, वो सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए टाइम दिया। विद इन 30 डेज अगर मैं अप्लाई करता हूँ, मान लो 16 मार्च को मैं थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, तो आज मैं लायबल हो जाता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर मैं समझो 5 अप्रैल को एप्लीकेशन करता हूँ तो इट इज विद इन 30 डेज। 5 अप्रैल को मैंने अप्लाई किया, इट इज विद इन 30 डेज। तो मान लो ऐसा कि मैंने 5 अप्रैल को अप्लाई किया और 10 अप्रैल को मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया डिपार्टमेंट ने। तो अगर वो रजिस्ट्रेशन मुझे भले 10 अप्रैल को ग्रांट हुआ हो, इट विल बी विद इफेक्ट फ्रॉम 16th ऑफ मार्च। समझ में आता है? जिस दिन को मैं लायबल होता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, उस दिन से मेरा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा, अगर मैं 30 दिन के अंदर अप्लाई करता हूं तो। देखो समझ में आ गया? देखो रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट हो रहा है, 10th ऑफ अप्रैल को हो रहा है, बट इट विल बी विद इफेक्ट फ्रॉम 16th ऑफ मार्च। ये कब, अगर मैं 30 दिन के अंदर अप्लाई करता हूं तो। अंडरस्टूड? इफ आई डू नॉट अप्लाई विद इन 30, मैं 30 दिन के बाद अप्लाई करता हूं तो जिस डेट को मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा डिपार्टमेंट से, उस डेट से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर देखो 16 मार्च को टर्नओवर एक्सीड हो गया, मैं आज लायबल हो गया 16 मार्च को, मैंने एप्लीकेशन किया 25th ऑफ अप्रैल को, मतलब 30 दिन के बाद, और सपोज 2nd ऑफ मई को मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, तो माय रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 2nd ऑफ मार्च एंड नॉट फ्रॉम 16th ऑफ मार्च, सॉरी 2nd ऑफ मई, नॉट 2nd ऑफ मार्च। माय रजिस्ट्रेशन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2nd ऑफ मार्च, 2nd ऑफ मई। ओके, सो इट विल नॉट बी इफेक्टिव ऑन 16th ऑफ मार्च। इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है पता है? बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। देखो ऐसा है कि मैं लायबल होता हूँ जीएसटी पे करने के लिए आज से ही। ओके, तो जब मैं लायबल होता हूँ तो आइडियली आई एम एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर एंड पे टू द गवर्नमेंट, so nothing will go from my own pocket। आइडियली ऐसा होना चाहिए। देखो अगर मैं 5 अप्रैल को अप्लाई करता हूँ, 10 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन मिलता है, मतलब विद इन 30 डेज मैंने एप्लीकेशन किया और अगर रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वो रजिस्ट्रेशन 16 मार्च से इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब 40 लाख क्रॉस करने के बाद हर एक ट्रांजेक्शन जो मैंने किया है, इस पे ऊपर आई बिकम एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर एंड पे टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या कि मेरे खुद के पॉकेट से कोई भी टैक्स मुझे नहीं देना है, मैं लोगों से कलेक्ट करूंगा और पे करूंगा। देखो अगर मैं 30 दिन के बाद एप्लीकेशन करता हूं तो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा 2nd ऑफ मई से, मतलब मैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑथोराइज कब से हो गया? 2nd ऑफ मई से। रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं तो मैं आई एम नॉट ऑथोराइज टू कलेक्ट टैक्स, तो आई बिकम ऑथोराइज टू कलेक्ट फ्रॉम 2nd ऑफ मई
लेकिन 16 मार्च से 2 मई तक का बीच का जो पीरियड है, उसमें जो मैंने ट्रांजेक्शन किया है, उसके ऊपर मैं लायबल टू हूँ टैक्स पे करने के लिए, लेकिन मैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। तो आई हैव टू पे टैक्स फ्रॉम माय ओन पॉकेट। दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप विद इन टाइम एप्लीकेशन करो। सेकंड, इसका वाइस वर्सा बाजू भी हम देखेंगे। देखो ऐसा है कि मुझे अगर परचेस पे जो मैंने परचेस किया है उसका अगर मुझे आईटीसी लेना है तो मैं रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो अगर मैं 5 अप्रैल को विदिन 30 डेज एप्लीकेशन करता हूँ और 10 अप्रैल को आरसी ग्रांट होता है, वो आरसी 16 मार्च से इफेक्टिव है। इसका मतलब 16 मार्च के बाद जो भी मैंने परचेस किया है तो सब परचेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिलेगा। लेकिन अगर यही 2 में से इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन मिलता है तो आई बिकम एलिजिबल फॉर आईटीसी फ्रॉम 2 ऑफ मे। तो 16 मार्च से 2 मई तक मैंने जो परचेस किया है उसका आईटीसी भी मुझे नहीं मिलेगा। तो इंटरवेनिंग पीरियड का जीएसटी मेरे खुद के पॉकेट से जाएगा, प्लस मुझे परचेस का आईटीसी भी नहीं मिलेगा। दोनों साइड से मेरा नुकसान होता है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन। फर्क क्या है, विद इन 30 डेज में अगर अप्लाई करता हूँ तो जिस डेट से मैं लायबल हुआ उस डेट से इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन मुझे मिलेगा। अगर मैं आफ्टर 30 डेज करता हूँ तो जिस मुझे आरसी ग्रांट होगा उस दिन से इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन मुझे मिलेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे का जो एक चैप्टर है उसमें इस पॉइंट का रेफरेंस आने वाला है। तो ये सब जो हमने देखा ये नॉर्मल टैक्स के लिए, नॉर्मल टैक्स के लिए। ओके, अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या है तुम्हें, और सीटीपी एनआरटीपी और ये अब हम कनेक्ट करने वाले हैं। इसमें ऐसा है कि मैं आज से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं आज लायबल होता हूँ, इससे आगे का 30 दिन का पीरियड मुझे अवेलेबल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन सीटीपी के बारे में प्रोविजन ऐसा बोलता है, सीटीपी एनआरटीपी के बारे में, कि अगर आपको सप्लाई करना है तो बिजनेस शुरू करने से एटलीस्ट 5 डेज प्रायर यू हैव टू ऑब्टेन फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, टर्नओवर क्रॉस होने के बाद भी 30 दिन मुझे और मिल रहा है एप्लीकेशन करने। सीटीपी के लिए क्या है, आई हैव टू ऑब्टेन फॉर रजिस्ट्रेशन 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अंडरस्टूड। तो 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मुझे एप्लीकेशन करना है और गवर्नमेंट को एडवांस डिपॉजिट करना है। सेकंड थिंग देखो, आरसी ग्रांट हो रहा है 10 अप्रैल को, विद इन 30 डेज अप्लाई किया है, लेकिन उसमें ऐसा है कि मैं सप्लाई तो 16 मार्च से आगे करने वाला हूँ, जिसके ऊपर मुझे टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी मिल रहेगी। मतलब 16 मार्च से 10 अप्रैल तक मुझे, मेरे पास आरसी है क्या, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी मैं टैक्स कलेक्ट कर पाऊंगा क्योंकि वो बैक डेटेड इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन मुझे मिलता है। सीटीपी एनआरटीपी के बारे में वो क्या बोलते हैं कि जब तक आपको आरसी ग्रांट नहीं होता आप सप्लाई नहीं करते, टैक्सेबल सप्लाई आप नहीं करते। समझ में आ गया, ये दो डिफरेंट प्रोविजन, नॉर्मल और स्टेट। ठीक है, ये समझ में आ गया। इफेक्टिव डेट की कंसेप्ट समझ में आ गई सबको। देखो एग्जांपल देखते हैं। देखो, the aggregate turnover of Dharampur footwear industry has exceeded the applicable threshold limit of 40 lakhs on 1st September. It submits application for registration on 20th September and RCA grant on 25th of September. तो क्या हुआ कि मेरा 40 लाख का टर्नओवर कब क्रॉस हो गया, 1 सितंबर को क्रॉस हो गया। मेरा एप्लीकेशन किया 20 सितंबर को, मतलब विद इन 30 डेज किया, और आरसी ग्रांट हुआ 25 को। तो मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 1 सितंबर, जिस दिन से मैं लायबल होता हूँ उस दिन से। ओके, सेकंड केस देखो, मेहता टेली सर्विसेज इज एन आर्किटेक्ट इन दिल्ली विद एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs on 25th of October. He submits application on 27th of November. आरसी ग्रांटेड on 5th of December. तो क्या होगा देखो, 25 अक्टूबर को मैं लायबल हुआ, अप्लाई किया 27 नवंबर को, मतलब 30 दिन के बाद। ओके, और आरसी का ग्रांट हुआ 5th of December को, तो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगा, 5th of December से। डेट ऑफ आरसी क्या है उस बच्चे से। विद इन 30 डेज करता हूँ तो बैक डेटेड नंबर मिलता है, आफ्टर 30 डेज करता हूँ तो जिस दिन आरसी ग्रांट हुआ उस दिन से नंबर मिलता है। समझ में आ गया। देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और इंस्टीट्यूट इस प्रोविजन को बहुत ऐसे मतलब बहुत सारे टाइम पे टिपिकल प्रोविजन और जो इनवॉइस का एक अमेरिकन अप्लाई वो कनेक्ट करके मैंने क्वेश्चन पूछे। ठीक है, नाउ दिस इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट बेसिक था वो हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट इन रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 28 क्या बोलता है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो ऐसा है कि मैंने डिटेल सबमिट किया और रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया रजिस्टर। ऐसा हो सकता है कि उस डिटेल्स में कुछ तो चेंज हो सकते हैं फ्यूचर में,
ओके, मान लो अभी अपना प्लेस ऑफ बिजनेस लेट से यहाँ पे है, तो यहाँ ये एड्रेस देके मैंने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया। 2 साल बाद मैंने मेरा बिजनेस यहाँ से प्रेस्टीज पॉइंट शिफ्ट कर दिया, तो क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने जो डिटेल दिए थे उसमें कुछ तो बदल हो गया है। ओके, या फिर ऐसा होता है कि जब मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो ए बी एंड सी ये 3 पार्टनर थे, ओके, पार्टनरशिप फॉर्म में। 2 साल बाद सी का डेथ हो गया, सी की जगह डी पार्टनर के एडमिट हो गया, तो पार्टनर के चेंज हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरे आई एम हैविंग अ कंपनी एबीसी लिमिटेड, ओके, इसमें ऐसा है कि मैंने कोर्ट को एप्लीकेशन से मेरा कंपनी का नाम एबीसी से एक्सवाईजेड लिमिटेड कर दिया, देयर इज चेंज इन नेम, तो वो चेंज हो सकता है। ओके, या फिर ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त मैंने एक ईमेल आईडी दिया था, वो बाद में मैंने चेंज किया, मैंने एक मोबाइल नंबर दिया था, वो बाद में चेंज किया, मैंने बैंक अकाउंट डिटेल दिए थे, वो बाद में चेंज किए, ऐसा हो सकता है। ओके, तो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 26 बेसिकली रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जो डिटेल सबमिट किया है गवर्नमेंट, इसके बाद अगर कुछ चेंज होता है, ओके, उन डिटेल्स में, तो आपको अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा कि ये डिटेल चेंज हो रहे तो प्लीज आप ये आपके रिकॉर्ड में भी अपडेट करो और हमें अमेंडेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करो। समझ में आ गया? अमेंडमेंट मतलब जब डिटेल्स which we have submitted at the time of registration have undergone some change and that change needs to be implemented to GST department. ठीक है, इसलिए अमेंडमेंट के प्रोविजन जीएसटी लॉ में आए हैं। समझ में आ गया? ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो अमेंडमेंट्स हम करते हैं, ये अमेंडमेंट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, एक को बोलते हैं अमेंडमेंट्स इन कोर फील्ड और दूसरे को बोलते हैं अमेंडमेंट्स इन नॉन कोर फील्ड। सिंपली बताता हूँ, कोर फील्ड अमेंडमेंट मतलब बिजनेस के फंडामेंटल डिटेल्स जहाँ पे चेंज होते हैं उसमें बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोर फील्ड अमेंडमेंट, और जहाँ पे अदर देन फंडामेंटल चेंजेस है उसको बोलते हैं नॉन कोर। तो कोर फील्ड में देखो क्या क्या होता है, चेंज इन द लीगल नेम ऑफ बिजनेस, फंडामेंटल चेंज है, ओके, चेंज इन द लीगल नेम ऑफ बिजनेस, और एडिशन और डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। जैसे मैंने बोला ना, एक पार्टनर की डेथ होगी तो वो बाहर जाता है, नया पार्टनर ऐड होता है, या फिर कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है, ये सब जो है इसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। ओके, तो एडिशन डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर्स और चेंज इन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर मेरा एड्रेस ही चेंज हो गया। ये 4 टाइप के चेंज है जिसको हम बोलते हैं कोर फील्ड अमेंडमेंट। कौन से 4 देखो, नेम ऑफ बिजनेस, स्टेक होल्डर्स, उसके बाद चेंज इन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, चेंज इन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये 4 टाइप के चेंज है, इसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट टू कोर फील्ड्स। ओके, और ये 4 टाइप के चेंज होके और बाकी के जो चेंज है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो गया, ईमेल आईडी चेंज हो गया, छोटे छोटे चेंजेस, इसको बोलते हैं नॉन कोर फील्ड के चेंज। और ये फील्ड मतलब ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के फील्ड। ओके, तो देखो अगर कोर फील्ड में कोई चेंज होता है तो दिस इज इंपॉर्टेंट चेंज इन द लाइफ ऑफ द बिजनेस। तो इसके लिए आपको ऐसा है कि ये अमेंडमेंट के लिए आपको जब वो चेंज हो जाएगा विद इन 15 डेज ऑफ चेंज यू हैव टू अप्लाई फॉर अमेंडमेंट। ओके, और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे, अगर नेम चेंज हुआ है तो इसका कोर्ट का ऑर्डर रहेगा, वो देना पड़ेगा। अगर देखो एड्रेस चेंज हुआ है तो एड्रेस चेंज हुआ है तो मुझे कुछ नए एड्रेस का एड्रेस प्रूफ देने पड़ेंगे। ओके, या फिर स्टेक होल्डर चेंज हुआ है तो उसकी डिटेल देने पड़ेंगे। तो ये अगर कोर फील्ड में कोई चेंज होता है तो क्या होगा उसमें कि विद इन 15 डेज यू हैव टू अप्लाई, और कोर फील्ड चेंज के लिए जीएसटी ऑफिसर का अप्रूवल होना जरूरी है। ओके, अगर वो अप्रूव नहीं करता तो ये चेंज इफेक्टिव नहीं होते जीएसटी पोर्टल। अगर ऐसा है कि देखो कि ये चेंज, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस होने की वजह से जब आप कोर फील्ड में कोई अमेंडमेंट करते हो तो आपको अमेंडेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है, नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखो क्या पहले वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा, अगर एड्रेस चेंज हो तो नए एड्रेस वाला सर्टिफिकेट चाहिए ना। ओके, सो अगर कोर फील्ड में अमेंडमेंट हो जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, ये अमेंडेड आरसी ऑफिसर मुझे इशू करना। नॉन कोर फील्ड के जो अमेंडमेंट है उसको किसी भी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, या फिर अमेंडेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये डिटेल मेरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तो कहीं पे मेंशन किया नहीं रहता जीएसटी सर्टिफिकेट। ओके, तो नॉन कोर फील्ड के जो अमेंडमेंट्स है वो अमेंडमेंट इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है। सपोज मोबाइल नंबर मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या होगा, सिर्फ एक ओटीपी आएगा, नंबर वैलिड हो जाएगा,
इमीडिएटली वो चेंज एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया व्हाट इज कोर फील्ड अमेंडमेंट, व्हाट इज नॉन कोर फील्ड? नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। सपोज आई एम हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन पुणे and I shifted the entire business, okay, from Pune to Ahmedabad. Okay, I shifted my entire business from Pune to Ahmedabad. तो ये जो चेंज है ये कोर फील्ड की अमेंडमेंट है कि नॉन कोर फील्ड की है? कोर फील्ड की, पक्का? व्हाई? फिर चेंज ऑफ बिजनेस, चेंज ऑफ एड्रेस। जीएसटी में कैसा रजिस्ट्रेशन है? स्टेट वाइज है। तो मेरा पहला रजिस्ट्रेशन था महाराष्ट्र में। इफ आई शिफ्ट बिजनेस फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, इसमें अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड? मुझे महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना पड़ेगा, गुजरात से फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना। ठीक है, ऐसे अमेंडमेंट में मेरा जीएसटी नंबर सेम रहता है, सिर्फ डिटेल सेम रहता है। ऐसा इस केस में हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? तो देयर आर टू सिनेरियोज वेयर अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट वन कि मेरा पैन ही चेंज हो गए, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है ना जीएसटी का, पैन बदल तो रजिस्ट्रेशन भी बदलना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा है कि देखो फादर के नाम पे कुछ बिजनेस है, फादर की डेथ हो गई और इनके सन ने वही बिजनेस कंटिन्यू किया आगे, तो कैसा होगा? फादर का पैन अलग है, सन का अलग है, तो वो ओल्ड जीएसटी नंबर पे बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, इसलिए सन को अलग से नंबर है। फिर पैन इज चेंज देन अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल, या फिर देयर इज अ चेंज इन प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इन दिस केस आल्सो अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड? अमेंडमेंट क्या होता है? तो देखो अभी हमने रजिस्ट्रेशन देखा, अमेंडमेंट भी देखा, नाउ नेक्स्ट इज कैंसिलेशन। जीएसटी नंबर का कैंसिलेशन सेक्शन 29 में कैंसिलेशन के प्रोविजन दिए गए। ये पूरा लाइफ साइकिल है बिजनेस रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन। सेक्शन 29 व्हाट इज रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो अगर ऐसा है कि कैंसिलेशन कब हो सकता है, देखो तो अगर ऐसा है कि मान लो मैंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, आई एम डूइंग द बिजनेस, ऑन वन फाइन डे क्या हुआ, मेरा बिजनेस बंद कर दिया मैं। ठीक है, तो इफ आई क्लोज डाउन माय बिजनेस तो मेरा जीएसटी नंबर चालू क्यों रखूंगा मैं? राइट, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा नंबर कैंसिल करना पड़ेगा। या फिर सपोज मेरे बिजनेस की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाती है। नाउ लेट्स आई एम वर्किंग एज अ पार्टनरशिप फर्म and I get converted into private limited company. There is a change in the constitution of business, right? There is a change in constitution. देखो पार्टनरशिप फर्म का पैन अलग रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड का पैन अलग रहेगा। पता है ना आपको, फोर्थ लेटर से आइडेंटिटी पता चलती है। यू डू नो दिस? पैन में फोर्थ लेटर जो रहता है, देखो अगर सपोज आई एम अ पर्सन, तो पर्सन तो मेरा जो पैन रहता है उसका चौथा लेटर जो है पी रहेगा। तो पी वाला पैन है, इसका मतलब इट्स अ पर्सन, मतलब इंडिविजुअल का पैन है। अगर कोई एचयूएफ रहता है तो फोर्थ लेटर पैन का एच रहता है। पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है तो फोर्थ लेटर पी सॉरी एफ रहता है। अगर आप ट्रस्ट हो तो फोर्थ लेटर टी रहता है, कंपनी हो तो सी रहता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं पार्टनरशिप फर्म से नॉट एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड में सपोज कन्वर्ट हो जाता हूँ तो मेरा पैन नंबर चेंज हो जाएगा ना। इसका मतलब मुझे ओल्ड वाले पैन से नंबर कैंसिल करना पड़ेगा, नए वाले नंबर किससे लेना पड़ेगा। तो इस केस में भी मैं नंबर कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, या फिर ऐसा है कि ये हुआ कि आप खुद एप्लीकेशन करते हो और आपका नंबर कैंसिल हो जाए। या फिर ऐसा होता है कि आपने जीएसटी नंबर लिया है लेकिन आपने एटीट्यूड दिखाया है ऑफिसर पे, तो मतलब ऐसा भी है, एटीट्यूड दिखाया, आपने कुछ प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट किए जीएसटी लॉ के, जैसे आपने कंप्लेंट केस नहीं किए तो ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन सीओ मोटो भी आपके नंबर वो कैंसिल कर। दो टाइप के कैंसिलेशन के प्रोविजन सेक्शन 29 में हमें देखने को मिलते हैं। एक कैंसिलेशन एप्लीकेशन मेड बाय द टैक्स पेयर एंड सेकंड वन सीओ मोटो कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। तो दो टाइप के केसेस हो सकते हैं। पहले जैसे कि कैंसिलेशन ऑन एप्लीकेशन, मैं खुद कब एप्लीकेशन कर सकता हूँ कैंसिलेशन। फर्स्ट वन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, ओके, फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेट ऑफ प्रोप्राइटर, राइट। तो मैंने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया या फिर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो उसके इसमें कैंसिलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो आई कैन apply for registration. So in case of death, that proprietor himself cannot apply. His legal heirs will apply for registration. Okay. Next,
full transfer of business, okay, for any reason including death of proprietor, amalgamation or demerger or otherwise disposal. मैंने मेरा जमीन बिजनेस सेल कर दिया किसी को, या फिर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई और बिजनेस लीगल हेयर को ट्रांसफर हो गया, या फिर अमालगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, इन सभी केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसफरर एंटिटी है उसका बिजनेस तो बंद हो गया, तो मुझे ट्रांसफरर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, ट्रांसफर इतना नए से लेना पड़ेगा, राइट। सो इस केस में आप अप्लाई कर सकते हो फॉर कैंसिलेशन, या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, ओके, पार्टनरशिप उनका कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, ओके, उस केस में, या फिर द पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू द रजिस्टर्ड, ऐसा हो सकता है क्या? सपोज मेरा पहला टर्नओवर लेट से 80 लाख टू 1 करोड़ का टर्नओवर होता था, इसलिए मैंने नंबर ले लिया जी। कोविड की वेव आने के बाद मेरा पूरा बिजनेस ये मतलब डाउन हो गया, और मैंने हार्डली मेरा 10-15 लाख का टर्नओवर होता है हर टाइम, तो इनिशियली आई वाज लायबल अंडर 22 or under 24 for obtaining registration. Now I am not liable. In that case also I can apply for cancellation. So ये 4 केस में मैं खुद से एप्लीकेशन कर सकता हूँ कि मेरा नंबर कैंसिल करें, ओके, अंडरस्टूड। तो इन 4 केस में आप खुद से अप्लाई करके नंबर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो यूआईएन होल्डर्स है, यूआईएन होल्डर्स कौन होते हैं? हाँ, यू नो, और उनके स्पेशलाइज्ड बॉडी, वो जो है ना, वो लेकिन कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते, बाकी सब लोग कर सकते। ये हुआ कि मेरे खुद के एप्लीकेशन पे कैंसिल हो। सेकंड कैटेगरी जो है कि सुओ मोटो कैंसिलेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। ऑफिसर खुद से आपका नंबर कब कैंसिल करेंगे? फर्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावीन एनी प्रोविजन अंडर जीएसटी एक्ट प्रोविजन। अगर आप जीएसटी एक्ट या जीएसटी रूल के कोई भी प्रोविजन क्या करते हो, कॉन्ट्रावीन करते हो, ठीक है, और वो कॉन्ट्रावेशन बहुत सीरियस नेचर का है, तो ऑफिसर फिर से आपका नंबर कैंसिल करेंगे, ओके। नेक्स्ट, कंपोजिशन टैक्स पेयर has not furnished returns for a financial year beyond 3 months from the due date, okay। ये जो कंपोजिशन, इसके बारे में हमने अभी तक बोला नहीं है, लेकिन जस्ट मैं रेफरेंस में बताता हूँ कैसे होता है कि कंपोजिशन टैक्स पर जो रहता है ना, उनको हर साल में एक ही रिटर्न भरना हो, पूरे साल का एक ही रिटर्न रहता है उनको, फिर कंपोजिशन स्कीम में छोटे टैक्स पेयर्स के लिए। तो ऐसा है कि उसका ड्यू डेट कैसे रहता है कि 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता है, उसके बाद 30 अप्रैल तक वो रिटर्न उसको भरना होगा, okay। So if he has not furnished return for a FY beyond 3 months from the due date, तो 30 अप्रैल का ड्यू डेट है, वहां से 3 महीने तक वो रिटर्न नहीं फाइल करता, तो 30 अप्रैल, 31 मई, 38 जून, 31 जुलाई, if does not file his return up to 31st July, then officer can cancel his registration, okay। जीएसटी में रिटर्न टाइम पे फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, ओके। सेकंड थिंग, non-composition taxpayer has not furnished return for a continuous period of 6 months, या फिर अदर देन कंपोजिशन वाला है, उसके लिए अलग प्रोविजन है। अगर कोई अदर देन कंपोजिशन टैक्सपेयर है और वो कंजिक्यूटिवली 6 मंथ के लिए या कंटिन्यूस 6 मंथ के पीरियड के लिए रिटर्न ही फाइल नहीं करता, तो इन दैट केस आल्सो ऑफिसर कैन कैंसिल हिज रजिस्ट्रेशन। या फिर पर्सन हु हैड ऑब्टेन्ड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(3) बट फेल्स टू कमेंस बिजनेस विदिन 6 मंथ्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, राइट। अगर मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं भी हो रहा है, फिर भी मैं रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो सपोज मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर दिया, लेकिन नंबर लेने के बाद विदिन 6 मंथ इफ आई फेल टू कमेंस एनी बिजनेस, देन ऑफिसर कैन कैंसिल माय रजिस्ट्रेशन। या फिर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो मतलब कोई ढोल झपाटा करके मैंने नंबर लिया है, ओके, मैंने कुछ फ्रॉड किया है, बिल्कुल मिसस्टेटमेंट किया है, या फिर कुछ फैक्ट्स सप्रेस किए और रजिस्ट्रेशन अगर मैंने ऑब्टेन किया है, इन दैट केस आल्सो ऑफिसर कैन कैंसिल माय रजिस्ट्रेशन, ओके, अंडरस्टूड। इन दैट केस आल्सो ऑफिसर क्या कर सकता है, मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है। बट जब भी ऑफिसर सीओ में तो कैंसिल करेगा आपका नंबर, तो ही हैज टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया है कि यू हैव टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। का मतलब वो उसके मन में आया और तुरंत नंबर कैंसिल किया, ऐसा नहीं कर सकता, ओके। ये आप वो ऑफिसर को पहले आपको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि इसके ऊपर आपका कुछ अगर कहना है या आपको कुछ वैलिड जस्टिफिकेशन है तो आप वो पुट करो, ओके। सो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज मस्ट बिफोर कैंसिलेशन अंडर दिस
सुयोमोटो रूट। ओके, तो मुझे मेरा कहना बताने का मौका उसने देना चाहिए। वो देने के बाद भी अगर मैं कुछ नहीं उसके सामने जाता तो फिर विल डायरेक्टली करें। ओके, समझ में आ गया सुयोमोटो कैंसिलेशन और ओवरऑल रिगार्डिंग कैंसिलिंग। ओके, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन? अगर मैं जब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता हूँ तो व्हाट विल बी द इफेक्ट और व्हाट विल बी इम्प्लीकेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू कैंसिलेशन? ऑफिसर में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन। सस्पेंड का मतलब देखो ऐसा है कि सस्पेंड मतलब वो मुझे कोमा में भेज सकता है, कैंसिल मतलब पूरा डेथ है। ओके, इसका मतलब ऐसे कि सपोज आज 16 मार्च को मैंने एप्लीकेशन किया कैंसिलेशन का, तो ऑफिसर उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए उसके पास पीरियड रहता है 15-20 दिन 30 दिन का। तो मैंने आज अगर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया तो इमीडिएटली मेरा नंबर सस्पेंड हो जाता है, मतलब लाइव भी नहीं है और कैंसिल भी नहीं है, बीच का ये है। ओके, तो क्या होता है सस्पेंड हो जाता है till the officer actually cancels my number. Okay, no taxable supply to be made during such period. तो मेरा अगर नंबर आज सस्पेंड होता है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है ना, सो आई विल कलेक्ट टैक्स, दिस नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट, कैंसिलेशन शैल नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी और ड्यूज under GST Act and rules or liability to discharge any obligation under GST Act rules for any period up to the date of cancellation. मतलब मैंने अगर 16 मार्च को रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है तो 16 मार्च से आगे मुझे कोई ऑफिसर आके पूछ नहीं सकता, लेकिन 16 मार्च तक जो पाप मैंने किए हैं, ओके, उसका जो कुछ भी किया है वो मुझे मतलब उसका जो भी कंप्लायंस है उससे चेक करना नहीं है। तो अप टू 16 मार्च मैं जीएसटी के लिए लायबल 100% हूँ। आफ्टर 16 मार्च आई एम नॉट लायबल, बट अप टू दैट डेट आई एम 100% लायबल फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग। एंड कैंसिलेशन अंडर एनी वन जीएसटी एक्ट डीम्ड टू बी कैंसिलेशन अंडर ऑल अदर एक्ट। जैसे रजिस्ट्रेशन किसी एक एक्ट अंडर का सभी एक्ट अंडर लेता है, वैसा इसे नहीं आती। एंड जो लास्ट वाला पॉइंट है, टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू XYZ XYZ, ये पॉइंट मैं अभी डिस्कस नहीं करने में, क्योंकि ये प्रोविजन समझने के लिए आपको इनपुट टैक्स प्रोविजन के प्रोविजन पता होना जरूरी है। कि जब हम इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजन डिस्कस करेंगे, एट दैट टाइम आई विल डिस्कस दिस पॉइंट। ओके, regarding effect of cancellation. Now there is a revocation of cancellation. निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव वैसा है कैंसिलेशन का रिवोकेशन, इसका मतलब नंबर फिर से लाइव हो जाता है। ओके, ये ऐसे भी प्रोविजन जीएसटी लॉ में है कि मेरा नंबर जो है वो फिर से लाइव हो जाता है। कौन से केस में? देखो, जहाँ पे ऑफिसर ने स्लो मोटो कैंसिल किया है उसी केस में मैं वो कैंसिलेशन कैंसिल करके मेरा नंबर फिर से चालू करता हूँ। मैंने खुद से एप्लीकेशन किया है मेरा नंबर कैंसिल करो, और बाद में आप बोलोगे नहीं नहीं कैंसिल नहीं करना, खुद से चालू करो, तो दिस नॉट अलाउड। ओके, लेकिन अगर ऑफिसर खुद से स्लो मोटो अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, ओके, तो आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए बाद में अप्लाई कर सकते हैं। देखो, कैंसिलेशन का रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन का रिजेक्शन मतलब नंबर फिर से चालू करना, नंबर फिर से लाइव करना। ओके, तो उसमें इफ ऑफिसर सुयोमोटो कैंसिल्स योर रजिस्ट्रेशन, तो व्हाट इज द क्रोनोलॉजी? सुयोमोटो उसने आपका नंबर कैंसिल किया है। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन विद इन 30 days ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर। उसने जो कैंसिलेशन ऑर्डर वो पास करेगा, वो पास करने के बाद 30 दिन के अंदर आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन, मतलब 30 दिन के अंदर करना है, ऐसे नहीं 2 साल के बाद आप यू बिकम अवेयर कि अरे वाह मेरा नंबर कैंसिल हुआ है, नॉट अलाउड। ओके, within 30 days you have to apply for cancellation of for revocation of cancellation. ओके, इसके बाद ऑफिसर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। ओके, अगर आपके वैलिड ग्राउंड्स है तो आपका रिवोकेशन एक्सेप्ट करेगा और आपका नंबर फिर से शुरू हो जाएगा। अगर वो रिवोकेशन रिजेक्ट करता है तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल हुआ है जीएसटी में बताता हूँ कि लोग ना रिटर्न नहीं भर पाते। रिटर्न भरने के टाइम आपको जीएसटी का पेमेंट करना मैंडेटरी है। अगर पैसा नहीं रहेगा भरने के लिए भी तो रिटर्न भी पेंडिंग ही रहेगा, और उसके उस वजह से अगर आपका नंबर कैंसिल हो जाता है तो आपको ऐसा है कि जब ऑफिसर को एप्लीकेशन करते हो रिवोकेशन के लिए तो वो बोलता है कि क्या गारंटी है कि मैं नंबर चालू करने के बाद आप जीएसटी भरोगे। तो पहले आपको बोलते हैं पहले आप जीएसटी डिपॉजिट करो, पहले चलन पे करो उसका, आपको वर्किंग दिखाओ कि आपने लायबिलिटी कैसी डिटरमाइन की, उसके बाद में आपको आप ओके, इन दैट केस योर एप्लीकेशन बिकम्स, मतलब उस केस में आपको रिवोकेशन कैंसिलेशन का रिवोकेशन हो, तो नंबर फिर से लाइव होता है।
नाउ जैसे रिवोकेशन में ऐसा आया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं। ऐसा है कि सपोज मैंने मेरा लास्ट रिटर्न 31 मार्च 2023 को फाइल किया था। कब किया था? 31 मार्च 2023 को फाइल किया। ओके, और यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि इसकी वजह से उस ऑफिसर ने, लेट से आज डेट कितना है, आज डेट है 16th ऑफ मार्च, 16th ऑफ मार्च 2014 को मेरा नंबर कैंसिल कर दिया, ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम 16th ऑफ मार्च। समझ में आ गया क्या हुआ है? ऑफिसर ने क्या किया, मेरा नंबर कब कैंसिल किया है, 16th ऑफ मार्च 2024 को, विथ इफेक्ट फ्रॉम 16th मार्च 2024। आज के डेट से नंबर कैंसिल हुआ है। इसका मतलब लास्ट रिटर्न भरा था 31 मार्च को, 31 मार्च 2023 से 16 मार्च 24 मेरा नंबर लाइव है, और 16 मार्च से आगे कैंसिल हुआ है। इस केस में अगर मैं रिवोकेशन के लिए मुझे अप्लाई करना है तो सबसे पहले मुझे मार्च 23 से मार्च 24 तक का जो इंटरवेनिंग पीरियड है इसके सभी पेंडिंग रिटर्न्स पहले फाइल करने पड़ेंगे, इसका टैक्स पे करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल बी एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। ओके, अंडरस्टूड। नाउ किन सम ऑफ द केस में ऐसा भी होता है कि देखो 31 मार्च को मैंने मेरा लास्ट रिटर्न फाइल किया, ऑफिसर ने 16 मार्च 24 को नंबर कैंसिल किया विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 24। समझ में आ गया? इसमें इफेक्टिव डेट कौन सा डाला, लास्ट साल का डाला, तो कैंसिलेशन डेट तक तो रिटर्न फाइल किए हुए हैं मैंने ऑलरेडी। तो मुझे रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन करने के बाद जब मेरा नंबर लाइव हो जाएगा उसके बाद विद इन 30 डेज मुझे वो पेंडिंग रिटर्न को फाइल करने चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अनदर चैप्टर, बट 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके, इतना साफ फाइल को चालू करेंगे।